everyone. Yes, please start. Okay. Hello, everyone. Welcome to NDS family. It's so good to see you, everyone. It's been a long time, seems like, but we have a disclaimer, which is we are not a doctor, we don't have any knowledge, and we don't have any background. We don't have any medical field knowledge also. Please follow your doctor advice. We are only sharing the people who got benefit from NDS. Our next seminar will be on August 28th. And we're going to let you know the time because we may going to go back to our time, which will be 2:30 p.m. And next month, we are going to go on a healthy diet program. That will be on August 5th, August 1st to August 5th. This program is to learn about healthy life and how we can maintain our good health. And we're going to let you know. And we're going to have a special seminar for this kind of diet, which is on August 3rd on Tuesday. And that will be on 8 p.m. Or you talk about Zoom session for that special diet week you are going to do that. Is that right? Yeah. Zoom session will be in the evening. Yeah, which will be on August 1st to 5th, what we are planning to do the healthy diet system. And we're going to talk about how we're going to do it and why we need to do it. And then we will start on, we should start before that. So please look at our program. Can I add something here, Meeraben? I'm going to conduct a fasting seminar September 1. On September 1, we will do 24 hours. That's the first week. Second week, we will do it. Actually, this will be the September 2nd, and you go ahead and read our WhatsApp message on a WhatsApp group. Next week would be 9th and 10th, which is 48 hours. And then it would be on a third week would be 16th, 17th, 18th, 72 hours. And then fourth week would be 4 days, which is 96 hours. But I will be guiding everyone that in the beginning of the week, I'll conduct the Zoom seminar. It will have a separate group, and me and Purnima will be guiding everyone. And everybody has to of course, there to do it on their own, but we will guide you how to do it. And last time we did that, a lot of people got a lot of positive results, and everybody's been demanding it, but we're going to do that in September. Go ahead, Purnima, go ahead. You go ahead and explain about the program, what we're going to do today. Oh, yeah. So today, what we have done, you're going to talk about the Khader's thing? Yeah. So what we're going to do today is basically we have several people going to be participating in it. But before we do that, this week is a Guru Purnima week. So, in our life, we have a lot of gurus. We have a health guru, we have a spiritual guru, we have a diet guru, we have in a certain homework, you have a wife is your guru, so, you have to thank every guru you have in your life. So you have to thank them. So we are thanking our Chauhan Sahib, who has started the NDS group, and Chauhan Sahib, please accept our pranam. And so that is that. We have a couple of people speaker. One will be talking about the lung cancer. The person that's going to talk about the diabetes, and then we have I'm going to talk about a little bit. Somebody asked me a question on the kidney and how to do kidney cleansing and liver cleansing. And then Punita will also have a very special guest she has invited. But Punita, you had invited Khader. Why? What was the reason did you invite him? Well, the reason we invite Dr. Khader Wali because we are not changing anything in NDS or new diet system.
Only thing, people who are having a dinner and they are taking a grain in the evening. And we find out lately, like the last 30 days, me and Deepak Bhai is trying with the millet, a lot of recipe, and millet has a lot of fiber and protein and it's gluten free. So we are trying to replace the rice and the wheat. But that really, really help us a lot in our system. And we are pretty much open. Anything can help to our health. But a lot of people like misunderstand that are we changing our new diet system? No, we don't. Only thing is add to the value in the evening, whatever we are eating, we're going to have a millet diet instead of the wheat. And that will help us a lot. And that's the only reason we ordered. You invited Dr. Khader. And Yeah. Dr. Khader, can I give a little background? Dr. Khader was a 10-year scientist who did a PhD in a millet and related field. Then he did a lot of research, and he's such a nationalistic person. He decided that my country needs my knowledge more than anybody else. So he went back to India, and then he started teaching millets to farmers, and especially in area like Punjab where they grow a lot of wheat and stuff, and he's kind of teaching them, hey, stay away from wheat. Wheat is not your friend, but millet is. And he's conducting a lot of seminars, and he's conducting a lot of talks and stuff. So I was quite impressed with it, that he's doing such a good work. So I thought we invite him to go and give us a knowledge of the millets. So I went to his website and invited him, and he's such a simple guy. He said, okay, I'll come and give a talk. Unfortunately, what he wrote me last one, which I'm going to read it to you, that the emergency meeting came, and they 1,100 farmers community in India. He's addressing them. They would like to learn about millet and not to grow anything else except a healthy grain. So he said, Deepak Bhai, I would like to go and take care of that business. I'm helping a lot of people. Then, and a funny thing he wrote me, he said, when you go in a plane, they said when you short of oxygen, then mask comes down. Then they said you put oxygen in yourself first, and then you help others. So he said, I have to help India first before I come to you. So he asked for change of date, and he said, we will go ahead and I'll come back again. So fault is mine. We gave him very short notice. He's such a noble guy. He's doing a lot of seva. What I understood from a good friend of mine who was his patient, and he's told me that, 14th or 15th of December, he takes appointment for the whole year. In 2 days, his calendar gets filled. So he does see patients, and the rest of the time he goes and helps the different societies, different localities, different states he goes. And and he taught himself how to speak in Hindi, and so he's a noble person in our country. We are proud to have a person like Dr. Khader who's really doing a lot of seva throughout the world. So he asked for forgiveness, saying that, hey, let's change the date. My priorities are different right now. So Punita, and that's why he didn't come. That was the reason. Right. So we have to understand that, right? Right. Yeah. So what did you did? You went a little bit extra step. You lined up people who are in the NDS field for a long time, and one of your most favorite person you have invited today to talk. And looks like everybody loves her, and she's just a beautiful human being, and you're gonna have her come and talk. And I wonder if she's already checked in or not. Can you look at that and see if she's in attendees? Yeah. Dhartiben, are you there? Hello? Yes. Dhartiben, are you there? Okay, so Mukesh bhai, no. Okay, so it looks like she has not come in. So she told me, yeah, okay, it's Because it's in the morning in India. yeah, they're gonna check in Yeah. around 6:30. So why should I? Well, what I have invited 5 different speaker, and one of them is gonna talk about the diabetes and related, and how he completely, the guy who had a long-term diabetes, how did he completely cured himself?
and we had to invite him again. He did talk in one of our beginning meetings, but people demanded that we would like to hear Mr. Harish Patel from Tampa, Florida. Would you please invite him again, because some of the tips he gave us we got forgotten. We need some little moral support. So Harish Bhai was very busy, and I said, would you please come for at least 8-10 minutes and give us a talk, and maybe if somebody has a short questions, we may be able to ask the question. In the meantime, if you have any question, and another thing I want to ask Punitaben, the reason people write you a question in advance, how does that help you? So you can line up a speaker according to people's demand, so they can hear from somebody who has cured themselves, and the speaker who's going to talk, they would have in advance, they have questions already available. Right. Is And that we right? don't repeat the question also. Yeah, okay. So we don't repeat the question. So one of the other thing, on a WhatsApp group, you have some requirements, what you can post, what you can do, what you cannot post. And what we have done, somebody had posted which did not meet our criteria, and I apologize to that person. We didn't mean to be harsh on you. Actually, idea was to just post everything which is relates to NDS and health related field. Is that correct? Correct. Yeah. So what are the things you don't want them to post? Besides new diet system or any point about the health, or anything can benefit to our health or our body, most welcome to please post it. Is no problem. But for some seminar or Any religious lecture, comment religious or good comment, morning yeah. or weather or nothing like that, right? Right. Yeah. So just strict to, so people when they read, they don't have to read through, a lot of different things which is not related to health related. So that's why, and then personal messages, go to their personal WhatsApp group and tell them whatever message you want to give. Is that correct, Pridhaben? Correct. Yeah. So, Artiben is here. Did you see that? Artiben Damani. If people don't know who Artiben Damani is, she has been giving a selfless service for quite a number of years and teaching yoga, meditation, and the asanas on daily basis on internet. And Artiben, thanks for coming. I salute your services to the humanity and our community, and everybody appreciates that. Everybody appreciates that. We Thank get up you early so in the much. morning to attend your classes. Thank you. Yeah, Thank you. you're- I'm thank- also grateful for you for doing this service. Everybody has to have a good eating habits, and that's how they move forward in life. Correct, Yes, correct. very good. Thank you for doing this. Yeah, It's no, awesome. yeah, thank you. And Artiben also connected to Artiben, the group you are connected, you are doing this seva. What is the name of the group? Hindu Community Institute, HCI. HCI. And you are related to also some mandir also. You guys part of the mandir also. I've been teaching kids yoga it's a very short class, 15-20 minutes before their Hindi class in Sanatan Dharma Temple in San Bruno. Oh, wonderful, wonderful, wonderful. Thank you for your service to the society. Yeah, that's Thank wonderful. you. Yeah, thank you so much. Other thing, Punitaben, we were going to request our listener and our the YouTube shows goes through, goes viral. So if what we want to do, this is our goal, and if anybody can help, would be greatly appreciate. We are looking for 6+ bedroom house where we would like to bring the people who are sick, who have a chronic disease or any kind of disease, bring them in for 30 days. We treat them, we feed them, and we take care of them. Once we make them healthy, they can go and and then teach other people and help other people. One of the motto our Guruji has is, if you get cured of your disease, you have a responsibility to help 5 more people. We do not, there is no fees to our program, there is no fees to anything, but you have a responsibility to help other people. And that's why Anil Bhai, Harish Bhai has come, because, Did you join? he got helped with the NDS, and he got rid of his diabetes of 20 years. Oh. And so
he made an offer. He made an offer. He made an offer to help us, to help other people. And last time when he talked, there are 5 people called me and they got their diabetes cured because of Haresh Bhai's guidance. Haresh Bhai, thank you so much. And you took your time to come and talk to us. I know you're a very busy person in Tampa, and for your time must be 9 o'clock or so. So why don't we start with you and just tell us your journey, how you cured the diabetes? Should we do that? Yeah, for me it's fine. But just make sure everybody for the diabetes, they have a question. Whoever asks the question, they are here on the line. And if possible, they can turn on their video. So, he's very happy to see their face and talk to them. Yeah, okay. So let's go ahead and go through your journey. Whoever asks the question, they turn on their video so I can, see their face and talk to them. I love to see people's face. Okay. Good enough. Okay. Go ahead. Okay. Yeah, I had a diabetes since 10 years, and last 3 years I am without medication. But when I had a diabetes, everybody know the symptoms. What are the symptoms? And I was tired of all the symptoms, and finally I came in contact with the Guruji Chauhan sir, and then he guided me first time. Then I said, usually we don't believe whoever comes across you, and then we start arguing, and we have some prejudice in our mind that I don't want to do it, and what is this and that kind of thing. So I tried myself and just experiment on myself, and it works, and then start working. And again he came and talked to me. I said, wonderful, you are doing this one. And he talked to me in detail that what is the problem and how you can cure the problem and all kind of thing. So in short, I'm not taking any medication right now, but before I was taking glyburide, metformin, 5/500 for 2 tablets in the morning and 2 tablets in the evening, and my A1C was 11.5. Now is a 5 point. So, and no medication at all, and I'm not taking any supplement too. Just not at all. Just everything is natural and diet-based system. So, Haresh Bhai, tell us, how did you do that? How did you get started from where you were and where you are now? Yeah, first I started with the fasting, because that's the main part of our NDS system, because of fasting. So I never did fasting, but Ashirwad from the Guruji, I did fasting from 1 day and nothing at all from the first day, not even water, nothing, all day empty stomach. And then I feel, I don't know, but I feel energetic. So second day I continue. So 2 day fasting without water and without food. And then I took enema. And after the enema, I see a lot of junk in my enema. Is black stuff, white stuff, a peppermint, jeera goli, those kind of thing came out from the stomach. And after that, it feel great. So sometimes people feel oh, enema is against this, against that, against the nature. But no, it works for me. And then that's I started. And from the next day, I started no breakfast, 0 breakfast. And then again green juice, and then raw food, and then again in the evening 50-50, a light, half of the khichdi and half of the salad, and those kind of thing I started. And slowly within 2 months, I was on medication during that period. But after 2 months, I was checking my blood sugar. First time after fasting, my sugar was around 170, 180. And then slowly, within 2 months, it came to again 110, 90, 100, 110, 100, 110, and that's all. Then my wife told me not to take a medicine, because I never refused to take a medicine, because my wife is a doctor, and she says, no, you cannot stop the medication, otherwise you will have a kidney problem. You might go to the hospital. So I said, okay, I will not take a medicine, but if you see my sugar 100, then how can you give me medicine? Okay, yeah, if I see your sugar 100, 110, then you don't have to take. And that thing happened. In the morning, he says, sugar is 110. Oh, wow, that's the magic. From that day, I stopped all medication, and that's all. That's day and the 2 days. No medication at all. But same time, breakfast is 0 for me. I forget what is the breakfast, definition of the breakfast. There is nothing like a breakfast in the morning. And the lunch, the same thing. I do my green juice every day without mistake, is by law. If you don't take green juice, you break the law.
So by law, I take a green juice. Raw food is my passion now. I create lot of disease and I different kind of mixing all this thing. I have a lot of pictures. I will share with him. And evening time, same thing is half of the salad and half of the khichdi is like millet and those things. I use that every day. But the main thing is no breakfast, no milk, and green juice. That's the priority for me. And 16 hours, I keep my stomach empty every day, no matter what. If I eat 6 o'clock, then my first green juice will be 10 o'clock. If I So eat you are 7 doing o'clock, intermittent fasting. yes, intermittent fasting. But yeah, according to like, and if I take 9 o'clock dinner, then yes, my 1 o'clock is my dinner time. So usually I finish my dinner every day before 6. So that's Okay. my regular style. And if you see like all reports like come positive, no more diabetes, and that's all is 0. Fantastic. 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 Okay. But So yes, you have to try. You have to just go and like jump into it. Yeah, you have to 100% trust. Chavan Sahib just sit next to me for like half an hour, more than half an hour. He explained me how the things work, but that's very in detail. So if anybody wanted to know in detail, they can contact me on a WhatsApp or number. I will post or you can. we are going to put your number on a screen later on. So Yeah, that's we good. can go in detail. It's a lot of things you need to. I mean, take care of it. But in short, this is the story about me. Okay, thank you, Deepak bhai. Yeah. So let me conclude what you just explained to us. What you had diabetes was 10, 20 years, whatever, and your wife is a medical doctor, and she told you that if your sugar is less than 100, then you don't need to take a medicine. Otherwise, she wanted you to take the medicine. You are lucky your wife is a doctor, but some other patients' wife are not doctors. So if they feel like that they're following it, what would be their barometer where they can go ahead and stop the medicine? Just check the sugar meter is available in any pharmacy and anything for like correct. $20. Just check your sugar and just go according to that one. Okay, my advice would be, don't just stop the medicine just cold-blooded. Yes. Go and cut into half or 3/4, then 1 week half, and then a quarter, and then don't take it. In other words, don't put the body through the shock. Your body slowly should get used to it. This is what I learned from Guruji. Exactly. That's the same thing he told me. Yes, exactly same thing. So that's what Chavan Sahib told me. So he said, do slowly, and that goes for your heart medicine. If your blood pressure is coming down slowly, and then it stabilizes it, then reduce your blood medicine. I mean, blood pressure medicine slowly, you can come down. So that's what needs to be done. Now, anybody has a question, please raise your hand, and we can ask, while Harish Bhai is here, and we are going to post his phone number in our WhatsApp group, and the end of the program we will put in our screen as well. So, and he's very kind man. He's been helping a lot of people in Tampa area, Florida NDS area. is our families. NDS is our families. I feel like we have a very large family. Yes. And you guys are conducting meetings, and you guys are conducting what do you call the potluck, and teaching people how to eat and what to eat. Every month, once a week, Sunday afternoon, like a 12 to 3 or 11 to 2, we have a raw party. So everybody brings their raw food, or sometimes they pay the money and we get catering from one of the raw food cooking is there in Tampa. So we order them and everything is cooked. We help her and just like all plate. Average price like $10 to $15 per person. There is nothing wrong in eating all like a 10 to 15 different variety of raw food. Okay, perfect. But keep in touch with everybody. That's very important. Talk to each other and meet like once a month or once a week or whatever you can. That's all. And it gives you moral support to each other. Yes. That's true. That is true. I have shared my life story with so many times, but I was diabetic patients, and I attended 10 days juice only seminar, which was green juice and ganna juice, which is the sugarcane juice, and I stayed 10 days on only that one, and my sugar was gone. So I mean, and we do that type of seminars right here
in US, but we do for 5. Go ahead. Diabetes નું જ છે. Yeah, go ahead. મહેશભાઈ કરી દેવે જોઈન કહી દેવું છે એમને? કોણ વાત કરે છે? Okay, now we'll go. Yeah. So, is anybody else has a question to Harish Bhai? Otherwise, our Dhartiben from India has just joined us. Harish Bhai, stick around and then I'll bring you back. Is that okay? Okay, we order some 100 books from India about Rasahar diet, and that will be available soon in our temple. It's called Rasahar diet from Kiran Vatare. So how to do your diet with the juice. So I order some 100 books. So I will post into the group. So whoever wants it. Perfect. Perfect. Yeah, Kiran Bhai is also going to be my guest speaker on in the next couple of months. Yeah. Okay. Perfect. Perfect. Go ahead, Puridaman, go ahead. Okay, we are very sorry that it takes a little time, but thank you so much. We have a special person coming today. She is so popular in New Diet System. She is the best person. And she helps people with a different disease by customize the diet. She also goes to naturopathy clinic in Bhopal and conducts seminar. When anyone visiting India, I highly recommend, please attend her seminar. It's a lots of fun, and lots of entertainment. She was very sick. She can't talk. She can't, it's very, and she was taking a lots of pill, lots of medicine. She can't do nothing. She can't walk. And at that time, her husband took her to the B.V. Chauhan seminar. Now she can walk, but besides that, she can dance. She is a wonderful dancer on top of that. She helps a lot of people. She is the best cook, like NDS food. What she cook is, very tasty. And we are so fortunate that we are able to reach her. Usually she is very busy. So here is a Dhartiben. Dhartiben, bolo. Please unmute. Welcome. Dhartiben, you have a choice to speak in English or Hindi, whatever you prefer, ma'am. Hindi. Hindi, yes, fine. Go ahead, please. Go ahead. हाँ जी, मैं धरती ठक्कर अहमदाबाद से और न्यू डाइट सिस्टम से पिछले 12.5 साल से जुड़ी हुई हूँ। चौहान साहब हमारे गुरुजी हैं और उन्होंने मुझे नया जीवन दिया है, एक ऐसा जीवन जो हमेशा निरोगी और हमेशा खुश। तो अगर आपको भी ऐसा जीवन चाहिए तो ये न्यू डाइट सिस्टम अगर आप जीवन में अपनाएंगे तो सच में जीवन में कोई भी दवाई नहीं आती है। 12.5 साल हुए मेरे घर में एक सिंगल मेडिसिन नहीं आई। मुझे भी बहुत सारी तकलीफ थी, सीवियर माइग्रेन, स्पॉन्डिलाइसिस, फ्रोजन शोल्डर, एक एक्सीडेंट में गिरने की वजह से L4 L5 में गैप और लास्ट स्पाइन में क्रैक, साइटिका, चलूं तो घुटनों में टिक टिक आवाज आती थी, हड्डियों में पानी भर जाता था पैर में, लिगामेंट बार बार क्रैक होते थे और सीवियर एसिडिटी, नींद न आने का प्रॉब्लम। तो उठते ही जैसे पैर नीचे रखूं तो पैरों में जैसे कांटे चुभते ऐसा लगता था, उठते ही चक्कर आते थे, बहुत बॉडी में वीकनेस और बॉडी इतना स्टीफ हो गया था और पूरे बदन में जैसे पूरे दिन दर्द ही रहता था, तो पेन किलर्स भी खानी पड़ती थी। तो इन सब से मैं इतनी घेर चुकी थी कि दिन में सुबह से लेके रात तक 40 टैबलेट मैं लेती थी, लेकिन अब मेरे जीवन में एक भी दवाई नहीं है जब से ज्वाइन किया। तो ये सिस्टम में बहुत पावर है। रोग चाहे कोई भी हो, रोग का नाम चाहे कोई भी हो, लेकिन हर रोग ये सिस्टम में चला जाता है, ये कंफर्म है। तो आपका रोग कोई भी हो, आप बिल्कुल मत घबराइए,
और जैसे पुनीता जी और दीपक भैया जैसे बोल रहे हैं, वैसे अगर आप फॉलो करोगे तो आपका हर रोग महीने, 1.5 महीने या 2 महीने में निकलना शुरू हो जाएगा और 4 महीने तक तो आपके सारे रोग मिट चुके होंगे। इसमें रसाहार यानी कि जूस थेरेपी सबसे उत्तम है। जूस डाइट पे जैसे ही जिसका रोग जितना पुराना है उतनी कठिन तपश्चर्या यानी आपको भूखा नहीं रहना है, लेकिन जूस डाइट और जूसी फ्रूट्स, जूसी वेजिटेबल्स ये सब आप ले सकते हैं। जितना भी चाहिए आप ले सकते हैं, लेकिन रॉ डाइट ही लेना है। और उसके लिए सुबह का फास्टिंग बहुत 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 जरूरी है, तभी आपका हर रोग जाएगा। सुबह के फास्टिंग में जो असर है वो किसी दवाई में असर नहीं है। सुबह का फास्टिंग है वो हायर एंटीबायोटिक से भी आगे काम करता है। उससे ही हमारी ऑटोफेगी एक्टिव होती है और उसी से हमारे सारे रोग जाते हैं। तो लंघनम परम औषधम जो हमारे शास्त्र में आयुर्वेद में कहा है वो हमें अपनाना है और सुबह का लंघन अवश्य करना है। जितना हो सके सुबह का फास्टिंग और फिर फास्टिंग के बाद ग्रीन जूस के बाद आप हर 2-2 घंटे में अगर 2-2, 3-3 ग्लास जितनी आपकी कैपेसिटी है, आप अगर जूसिस पे रहेंगे तो चाहे शुगर है, ब्लड प्रेशर है, कैंसर तक चला जाता है। तो बाकी सब रोग तो इतने मायने नहीं रखते हैं। जब कैंसर चला जाता है तो फिर बाकी सब रोग तो चुटकियों में चले जाएंगे। तो आपको केवल धैर्य से और पूरी श्रद्धा से ये सिस्टम करना है। जब मेरे रोग गए, मैं नाचती कूदती हो गई और मेरे पैरों में इतनी तकलीफ थी वो भी बिल्कुल चली गई। तो फिर आपकी जो भी तकलीफ है, क्योंकि ये सिस्टम से आपका पूरा ब्लड क्लीन हो जाएगा। जब आपका खून साफ हो जाता है तो हर रोग चला जाता है, लेकिन खून की सफाई के लिए कम से कम 1 चतुर्मास चाहिए, क्योंकि हर धर्म में चतुर्मास का महत्व है और ये चातुर्मास हमें करने ही चाहिए। क्योंकि अगर आप इसमें जुड़ गए और आपने पूरी तरह से ये सिस्टम 100% फॉलो किया, जैसे पहले दिन से तो हम कहेंगे तो आप नहीं रह पाओगे, क्योंकि हम पहले से खाने के लिए हमने जो सिखाया गया है, हमारे माता पिता ने हमें जो सिखाया है, हम उस पे ही बड़े हुए हैं। लेकिन हमारे रोग का कारण भोग है, गलत भोग। तो गलत भोग अगर हमें हटाना है, अगर हमें हमारी दशा बदलनी है तो दिशा बदलनी पड़ेगी। दिशा बदलने के लिए आहार का आध्यात्म समझना बहुत जरूरी है। जिसने जीवन में आहार का आध्यात्म समझ लिया, उसके लिए ये सिस्टम बहुत आसान हो जाती है। क्योंकि हम ये नहीं कहते कि आपको पूरी जिंदगी खाना नहीं है, केवल आज तक हमने जो भी खाया उसमें कुछ गलती की है, जिस वजह से हमें ब्लड प्रेशर, शुगर या अस्थमा, कोलेस्ट्रॉल, जो भी रोग हमें आए हैं, वो रोग हट जाए तब तक हमें तपश्चर्या करनी है। तो ये तपश्चर्या में आप आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ेंगे। जैसे कि पहले शुरुआत के दिनों में जब भी आप शुरू कर रहे हो, आपसे जितना हो सके उतना फास्टिंग सिर्फ शुरुआत कीजिए। कम से कम 9 बजे तक, 10 बजे तक जितना खींच पाओ खींचो, लेकिन विदाउट एनिमा आप ये सिस्टम नहीं कर पाओगे। ये सिस्टम में 50% रोल एनिमा का है। तो आज से एनिमा, कल से कच्चा। ये बहुत जरूरी है कि आप पहले एनिमा का प्रयत्न करें, और जब आपका एनिमा सक्सेस तो आपका सिस्टम सक्सेस, और आपका रोग अब हटना शुरू हो ही जाएगा। जैसे ही आप
एनिमा शुरू करेंगे, आपको आहिस्ता आहिस्ता आपका फास्टिंग आप आराम से बढ़ा पाएंगे। जैसे आपने रात को एनिमा किया, सुबह रूटीन लेटरिन जाने के बाद एनिमा किया, लेकिन एनिमा जो अलग अलग पोस्चर में बताया हुआ है वैसे आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारे इंटेस्टाइन का जो शेप है वो एक ही पोजीशन में कभी सफाई नहीं हो सकता है। तो हमारा पूरा इंटेस्टाइन क्लीन करने के लिए हमें अलग अलग पोस्चर जो दिए हुए हैं और जो पैम्पलेट में भी है और एक वीडियो में भी शेयर किए हुए हैं। तो ऐसे अगर आप अलग अलग पोस्चर में, अलग अलग पोजीशन में अगर आप एनिमा करेंगे तो आपका इंटेस्टाइन पूरा क्लियर हो जाएगा। लार्ज इंटेस्टाइन साफ तो सभी रोग माफ। तो इसीलिए पहले हमें लार्ज इंटेस्टाइन सफाई की शुरुआत करनी है और दूसरे दिन से वो इंटेस्टाइन को सफाई करने में क्या मदद करेगा, तो वो है रॉ डाइट, जो आसानी से हजम हो जाता है। रॉ डाइट काफी असरकारक है, लेकिन उससे भी असरकारक रस है। रस यानी जूस, इसलिए कि हमारे बॉडी को, हमारी किडनी को इसे पचाना ही नहीं पड़ता है, बहुत आसानी से हजम हो जाता है। जब भी हमें कोई रोग है तो हमें हमारी किडनी को कम से कम वर्कलोड देना चाहिए, तभी वो हमारे रोग के सामने लड़ने के लिए फ्री हो पाएगी। जब हमें खाने पीने में छुट्टी है, आज हमें खाना नहीं पकाना है, तो हम पूरे दिन थोड़े ना आराम करेंगे या बैठे रहेंगे। हम पहले आराम कर लेंगे अच्छे से, चलो भाई कल छुट्टी है, कल हमें ऑफिस नहीं जाना है, तो हम एक थोड़ा आराम ज्यादा कर लेते, लेकिन उठ के हम इतने फ्रेश होते हैं कि नहा धो के अगर हमें खाना नहीं पकाना है तो हम दूसरे काम में लग जाते हैं। दो अलमारी साफ कर लेते हैं, दो कपबोर्ड साफ कर लेते हैं। ठीक वैसे ही हमारी किडनी इसी तरह काम करती है। हम उसे जब वर्कलोड देना कम कर देते हैं, यानी कि पचाने का काम उसे कम कर देते हैं और केवल जूस ही देते हैं, तो किडनी को क्या करना है, बस यूरिन के जरिए और मलद्वार के जरिए उसको कचरा ही फेंकना है। जब भी हम जूस लेते हैं तो हमारा पुराना मल पिघल जाता है और वो जूस से भी उसका धक्का लगता है और एनिमा से भी उसको सफाई हम कर पाते हैं। इसीलिए जूस थेरापी सबसे बेटर है, चाहे कैसा भी डायबिटीज है। लेकिन आप बिल्कुल मत घबराइए, आप फलों के रस जो लेंगे उसमें तो फ्रुक्टोस है और फ्रुक्टोस से हमारा शुगर लेवल कभी भी नहीं बढ़ता है। तो हमें सच में जो भी हम जूस से हम डरते हैं उससे बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। और हो सके तो हम जैसे फर्स्ट हमारा जो भी हम ब्रेक करते हैं फास्ट को, तो अगर हम ग्रीन जूस लेते हैं, हरी पत्तियों का जूस, उससे हमें डायरेक्ट क्लोरोफिल मिलता है और जब क्लोरोफिल से हमारा खून भी सफाई होता है। इसीलिए ग्रीन जूस बहुत आवश्यक है। आपके यहाँ जो भी भाजी मिलती है उस भाजी का रस, लौकी और पंपकिन, आंवला न मिले तो आंवला का पाउडर और नींबू, और आपके घर में जो भी है सेंधा यानी रॉक सॉल्ट, ब्लैक पेपर और जीरा पाउडर, तो ये सब डाल के आप जूस को भी टेस्टी बना सकते हैं। और ग्रीन जूस आप पेट भर के पीजिए। जो भी जूस लीजिए आप मोनो डाइट कीजिए। एक जूस लिया तो पेट भर के पी लिया, अगर आपके 1.5, 2, 2.5 घंटे जितने भी जाते हैं, अब आपकी बॉडी क्लॉक आपको देखनी है, वॉल क्लॉक नहीं देखनी है। जब भी आपको भूख लगती है, हाँ जी, No, go ahead. हाँ जी, हाँ, Continue. अच्छा जी। तो जब भी आपको भूख लगती है, आपका बॉडी जब डिमांड करता है, तो आपको ऐसा लगता है कि अब मुझे भूख लगेगी, तो आप भूख से लगने से पहले आपकी नेक्स्ट जूस आप तैयार रखिए, ताकि आप और कुछ खा न ले। इसीलिए आप उसकी प्रिपरेशन पहले से धो के अच्छे से सफाई करके रखें, और जब भी आपको ऐसा लगे कि अब मुझे भूख लगने जैसा लग रहा है, आप तुरंत अपनी जो भी आप जिसका भी जूस बना रहे हैं उसको काट के
आप उसका जूस बना के, गर्मी है तो गर्मी के मौसम में थोड़ी देर तक आप 10 मिनट तक या 15 मिनट तक आप फ्रीज में रख दे। हल्का सा ठंडा गर्मियों में अच्छा लगता है शरीर को, तो हल्का सा ठंडा कीजिए, एकदम चिल्ड मत कीजिए, क्योंकि ऐसा वार्म जूस भी अच्छा नहीं लगेगा। तो आप ऐसे टेस्टी जूस बना के अपनी भूख से पहले आप तैयार रखिए और आप जूस ले लीजिए। जूस से अपने को तुरंत संतुष्टि मिलती है, क्योंकि पीने से संतुष्टि मिलती है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि खाने की क्रेविंग होती है। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि मुझे अब चबाने की क्रेविंग है, तो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आप धो के तैयार रखिए। सुबह का वक्त जो है वो हमें हमारे पूरे दिन की प्रिपरेशन के लिए निकालना है। જોયે છે તમને हाँ जी। તો ઉતારી આપો થોડું અરે યા કઢી બધા અમે તો જ્યુસ પણ પીએ છીએ મંગળાબેન બંધ કરો. મંગળાબેન પ્લીઝ ડોન્ટ ટોક. પ્લીઝ મ્યુટ કરીને યોરસેલ્ફ. શાકમાં નાખી તો બધું Go ahead. Sorry. Go ahead. Go ahead. धरतीबेन, go ahead. हाँ जी, हाँ जी। तो आपको जब भी खाने की क्रेविंग होती है तो आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स सब धो के तैयार रखिए। सुबह के वक्त में ही पूरे दिन की तैयारी कर ले, ताकि आपको जब भी खाना है धोया हुआ तैयार है, उसको बस केवल अपने कॉटन के कपड़े में ढक के रखिए। और आपको जब भी खाना है तो आप फ्रूट्स वेजिटेबल्स खा सकते हैं। लेकिन कभी कभी हमें सोडियम की, यानी कि ऐसा लगता है कि हम कुछ खट्टा खाए, कुछ सॉल्टी खाए, तो आप एक अच्छे से अच्छी चटनी बना ले। रोज अलग अलग 1 या 2 चटनी बना लेंगे, उसके साथ आपको कैसा भी रॉ डाइट आप उसमें डुबो के खाएंगे। जैसे आपके पास कच्ची लौकी है, कच्ची कोई भी वेजिटेबल है, उसको आप अच्छे से धो के कट करके उसके ऊपर जरा सा लेमन डाल देंगे, या फिर उसको कट करके पानी से सोक ऐसे भिगा के रखेंगे और उसको आप अगर चटनी में डुबो के खाएंगे तो हर चीज आपको पकोड़े जैसी लगेगी, क्योंकि टेस्ट तो चटनी का है। इसमें अगर आप कच्चे आलू भी खाओगे तो वो भी आपको पकोड़े जैसे लगेंगे। जैसे कि आप ग्रीन जूस बना रहे हैं, आपको अगर यूरिक एसिड की तकलीफ है तो आप ग्रीन जूस में एक आलू डाल दीजिए, कच्चा आलू, तो आपकी यूरिक एसिड की प्रॉब्लम चली जाएगी। शाम को जो हम एक वक्त का भोजन लेते हैं उसमें अगर आप 40 अप है तो आप पल्सिस लेना कम और हो सके तो शुरुआत में बंद कर दीजिए और ग्रीन वेजिटेबल ज्यादा लीजिए। देखिए आपका जो भी यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है बहुत जल्दी चला जाएगा। शरीर को आपको पसीना निकालना पड़ेगा, उसके जरिए हमारा यूरिक एसिड निकल जाता है। तो आप थोड़ी एक्सरसाइज कर कीजिए, सम्यक व्यायाम, सम्यक आहार और सम्यक निद्रा, ये तीनों बहुत जरूरी है जीवन में। हम अगर अपना सके, ये तीनों का संयोग हमें निरोगी बना सकता है। हमारे शरीर का मेन जो फूड है वो है गाढ़ निद्रा। और आज हम देखते हैं कि दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में 87% लोग स्लीपिंग पिल्स खा के सोते हैं। लोगों को अच्छी तरह नींद नहीं आती है। लेकिन पूरे दिन जब हम श्रम करते हैं तो पूरे दिन श्रम, श्रम के बाद भोजन और भोजन के बाद आराम। भोजन के बाद एक्सरसाइज नहीं की जाती है। एक्सरसाइज करने का वक्त सुबह का है, और जिसकी सुबह खटिया में उसका जीवन खटिया में। सुबह हो सके उतना आप अर्ली मॉर्निंग जाग जाइए, और आप अपने आप को अगर ये न्यू डाइट सिस्टम में ढाल देते हैं तो आपको जागने के लिए अब अलार्म रखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद ही जल्दी जाग जाओगे। आपके पूरे बॉडी की साइकिल इतनी अच्छी तरह चलेगी ये सिस्टम शुरू करने से कि आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। आपका जब आप एक वक्त का भोजन करते हो तो शाम को आप जल्दी ही खा लेंगे। अगर हम सोने के 3 घंटे पहले खाना खा लेते हैं तो उसका पाचन भी बहुत अच्छी तरह हो जाता है। और हम जितना जल्दी खाएंगे
तो उतना जल्दी हजम भी हो जाएगा और उतनी जल्दी नींद भी आ जाएगी। अब आपका नींद का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। शाम को एक वक्त का जो भी आप भोजन लेते हो उसमें अगर आप, जैसे बॉइल्ड सूप है, उसमें टोमेटो नहीं आने चाहिए। टमाटर बॉईल नहीं किए जाते हैं। और हो सके तो पालक को, स्पिनच को भी आप बॉईल मत कीजिए। कोई भी भाजी को सूप में डालना है तो शाम के लिए मैं बोल रही हूँ, आप जब हॉट सूप बना रहे हैं, खाना पकाने से पहले अगर हम सूप ले लेते हैं तो हमारी भूख आधी हो जाती है। तो भूख जब आधी हो जाती है तो हमारी भूख आधी करने के लिए हमें सबसे पहले वेजिटेबल सूप बड़ा बाउल भर के ले लेना चाहिए। फिर हम कोई बॉइल्ड वेजिटेबल ले लेते हैं, कोई हमारे घर में जो हमने अच्छी सब्जी पकाई है वो ले लेते हैं। तो फिर रोटी और राइस की जो भूख है वो हमें चली जाती है। अगर हमारा राइस और रोटी बंद हो गया तो फिर काफी हमें असरकारक रहता है, क्योंकि जब हमें ग्रेन्स बंद हो जाएंगे तो अब सब्जियों को पकाना तो बिल्कुल आसान हो जाता है। तो अब जब सब्जियां पचाने के लिए किडनी को इतना काम नहीं करना पड़ेगा, तो फिर हम क्या करेंगे कि जैसे आपको वेजिटेबल आपने बॉईल खाए, अब आप इसमें मिलेट्स का भी उपयोग कर सकते हैं। अगर कभी आपको इडली, डोसा, हमें कुछ भी, हम इंसान हैं, हमें खाने की इच्छा तो जरूर होगी। तो एक वक्त आप अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर ले, क्योंकि परमात्मा ने, भगवान शिव ने हमें जब सृष्टि की रचना की तब उन्होंने तो यही कहा था कि 3 बार नहाओ और 1 बार खाओ। लेकिन ये नंदी ने घोटाला कर दिया और उसने कहा कि 1 बार नहाओ और 3 बार खाओ, जिसकी वजह से आज होटल से बड़ी हॉस्पिटलें हैं और इतने डिसीज बढ़ गए हैं कि जो हमारी जन्म कुंडली में नहीं लिखे थे। जब हम पैदा होते हैं, हम हमारी जन्म कुंडली निकलवाते हैं तो किसकी जन्म कुंडली में ये बीपी, डायबिटीज, बाईपास, अस्थमा, कोलेस्ट्रॉल सब लिखा होता है? किसी की कुंडली में नहीं। ये रोगों वाली कुंडली हम खुद बनाते हैं। तो जो कुंडली में हमने गलत भोग के जरिए जो रोग लिखे हैं वो हमें ही मिटाने हैं। परमात्मा हमें जरूर मदद करता है, लेकिन उसके लिए प्रयत्न तो हमें ही करने पड़ेंगे। हम अगर अपना आहार बदल देते हैं तो रोग अवश्य चला जाता है। तो इसीलिए हमें सुबह के फास्टिंग के बाद रसाहार यानी जूस थेरापी, अगर जूस पे ना रहा जाए तो जूसी फ्रूट्स और जूसी वेजिटेबल्स आप खाइए। और आपको ऐसा लगता है कि हमें कुछ चटपटा खाना है तो आप अच्छे से कोई चटनी बना ले और चटनी के साथ ये कुछ भी आप खाएंगे तो अब आपका जीवन आसान हो जाएगा। रेसिपी बहुत है रॉ डाइट में भी, जितना आप पका हुआ बनाते हो उतना कच्चा बन सकता है। लेकिन अगर हम रेसिपी के पीछे भागने लगेंगे तो अपना काम कब करेंगे? और वैसे भी आपके यहाँ तो काम का कितना लोड होता है हमें पता है। चलो इंडिया में तो फिर भी हमें कोई हेल्पर मिल जाते हैं, लेकिन आपको तो घर का काम, जॉब और बच्चे को संभालना, पति को संभालना, मेहमान को संभालना, सब आपको अकेले को करना पड़ता है। तो थोड़ा टफ हो जाता है। तो आप अपनी लाइफ को आसान बना दीजिए। जब भी आपकी छुट्टी हो, जैसे आपको ऑफिस में, जॉब में आपकी छुट्टी हो, तो आप कोई आइटम रेसिपी बुक में देख के बना के, रॉ डाइट सिस्टम से आप ऐसी आइटम बना के आप अपना जो भी आपकी इच्छा है वो आप पूरी कर सकते हैं। लेकिन रोज के लिए आप आसान कर दीजिए लाइफ को, सिर्फ चटनी फ्रेश बना के ले जाने की जॉब पे, और बाकी जो भी ले जाना है साबुत ले जाने का, सिर्फ धो के, अच्छे से धो के इंसुलेटेड टिफिन में आप ले जाइए और चटनी का डिब्बा ले जाइए, 2 चटनी ले जाइए, कोकोनट मिल्क, आलमंड मिल्क, जो भी आपको वहां पे तो सब सुविधा है कि आपको रेडी मिलता है, उसके योगर्ट्स भी आपको मिल जाते हैं। तो आप दोपहर को हर चीज
आप जो आपके यहाँ वीगन मिलती है वो अनकुक है, वो सब आप ले सकते हैं और घर से भी आप ऐसी तैयारी करके जा सकते हैं। जैसे आप जॉब से लौटते हो तो आपका जो भी आपका सूप का प्रिपरेशन है वो आप करके पहले आप सूप गैस पे रख दीजिए और फिर आप सब प्रिपरेशन कीजिए। और उससे पहले आप वहां से आते ही एक अच्छे से बाउल भर के आपको कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा है तो जॉब से आके आप जैसे मुरमुरे है या पोहे का चिवड़ा है, जो भी आप घर में हल्का सा नाश्ता बनाते हो वो आप थोड़ा से ले लीजिए और उसमें थोड़ा अगर आप प्याज खाते हो तो प्याज टमाटर आपका जो भी सलाद रेडी है वो आप डाल के चटनी डाल के आप अच्छे से बाउल भर के खाते जाइए और बनाते जाइए। बस आपका इजी है। अब आपने अगर आपका खाना आप जो बना रहे हैं आप साथ में कुछ बाइटिंग कर रहे हैं तो अब आप खाना भी आराम से बना पाएंगे, क्योंकि सुबह से कुछ खाया नहीं है तो तड़प होगी एक भूख की। तो जब आपने थोड़ा सा नाश्ता कर लिया साथ में आपका खाना पक गया, अब हो सके तो आप पहले एनिमा कर लीजिए, क्योंकि एनिमा भूखे पेट ज्यादा इफेक्टिव रहता है। तो आप भूखे पेट जब एनिमा कर लेते हैं और एनिमा के बाद स्नान अवश्य कीजिए, तो आप एनिमा के बाद नहा धो के अब खाना रेडी है और नहा धो के भूख भी अच्छे से लगती है, तो आप एनिमा करके स्नान करके आप खाने बैठ जाइए और खा के आपका काम जो है वो निपटा लीजिए, सुबह की थोड़ी तैयारी कर लीजिए, फिर आप फ्री है। और आप जब भी पहली बार लेटे तो आप लेफ्ट साइड लेट के थोड़ी देर सोए तो आपका खाना भी अच्छे से हजम हो जाएगा। तो यही सब ट्रिक हमें अपनानी है। आप डेयरी, बेकरी और गेहूं बिल्कुल अवॉइड करेंगे और हो सके तो मिलेट्स का उपयोग करेंगे। आपको रोटी पराठा जो भी बनाना है उसके लिए मल्टीग्रेन मिलेट्स आप पिसा सकते हैं और अलग अलग मिलेट्स का भी आप उपयोग कर सकते हैं। आपको केवल 70% वेजिटेबल्स का उपयोग करना है जो भी आप खाना पकाए। आपको जो भी जैसे खिचड़ी पकानी है तो अगर आपने किनोवा या फिर मिलेट्स आपने ले लिए तो 1 कटोरी छोटी सी लेनी है, उसमें आप 4 कटोरी भर के वेजिटेबल स्टॉक्स आप जो भी तैयार रखते हो वो डालिए, तो आपकी हर चीज इतनी अच्छी भी बनेगी और आपको वो सुपाच्य भी हो जाएगी और इजीली वॉश आउट भी हो जाएगी। तो इसीलिए हमें हमारा खाना जो आहार का अध्यात्म है वो ऐसे ही समझना है कि हमारे आहार को हमें सुपाच्य बनाना है। सुपाच्य बनाने के लिए परमात्मा ने हमें पृथ्वी पे जो भी दिया है वो जो फल फ्रूट और वेजिटेबल्स है वही हमारे लिए उत्तम है। तो ऐसे आप आगे बढ़े न्यू डाइट सिस्टम में। शाम के एक वक्त पहले आप भोजन चालू रखेंगे, आहिस्ता आहिस्ता आपका शरीर ही आपको कहेगा कि अब हम ऐसा करते हैं कि थोड़े दिन रॉ डाइट पे चले जाते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता आप कंप्लीट रॉ डाइट पे दोनों टाइम आ जाइए। जैसे आप सुबह करते हैं तो पूरा ज्यूस फास्टिंग और शाम के टाइम एक टाइम अच्छे से आप थाली भर के अलग अलग फ्रूट्स और ये सब ले लीजिए, चटनी भी ले सकते हैं और आप अच्छे से फ्रूट पेट भर के खाइए, बिल्कुल मत घबराइए। आप भूल जाइए कि आपको शुगर है, क्योंकि फ्रूट से शुगर केवल 1 घंटे के लिए ही बढ़ता है। क्योंकि यहाँ पे हमारे सेमिनार में जो डॉक्टर भावेश भाई आए थे उनका ऑस्ट्रेलिया और यूके में ही उनका कंसल्टिंग वगैरह वो ऑनलाइन करते हैं। उनको 14 सालों से शुगर पेशेंट थे वो, और उनको काफी तकलीफ थी। वो एक इधर हाथ में सेंसर लगा के रखते थे जिसमें डायबिटिक, उनका जो भी डायबिटीज है वो पूरा दिन उनका उसमें जैसे सेंसर में सब आता है, कैसे अप जाता है कैसे डाउन जाता है, क्या खाते हैं तो कितना बढ़ता है, वो सेंसर उनका सब बताता है। तो वो जब पहली बार हमारे सेमिनार में आए तो हमने उनको गन्ने का जूस दिया, तो वो बोले कि गन्ने का जूस मैं कैसे पी सकता हूँ।
मैंने बोला सर आप पीजिए, आप एक बार पीजिए और उसका अनुभव कीजिए। और उन्होंने 14 साल 15 साल के बाद पहली बार गन्ने का जूस पिया और फिर वो बोले कि अब क्या होगा। मैंने बोला कुछ नहीं होगा, केवल आप प्रभु पे श्रद्धा रखिए, आपको कुछ नहीं होने वाला, ये प्रभु का प्रसाद है। उन्होंने 1 गिलास 2 गिलास 3 गिलास और फिर वो घबरा गए। मैंने बोला कोई बिल्कुल मत घबराइए, आपको जितनी जगह है आप पीजिए। 5 गिलास उन्होंने गन्ने का रस पिया और फिर उन्होंने अपना सेंसर थोड़ी देर के लिए चेक किया। तो 1 घंटे के बाद उन्होंने चेक किया तो शुगर थोड़ा बढ़ा हुआ था पहले, और जैसे ही उन्होंने 2 घंटे बाद चेक किया तो शुगर का लेवल बिना इंसुलिन बिना दवाई के एकदम समझो 110 पे आ गया। शुगर केन के 5 गिलास जूस पीने के बाद। तो अब उनको विश्वास हो गया कि ये नेचुरल शुगर हमें नुकसान नहीं करता है। वो डॉक्टर साहब भी, उनको भी आप जूम मीटिंग में ज्वाइन कर सकते हैं। वो रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर है, हस्बैंड वाइफ दोनों, और अभी वो पूरे इस सिस्टम से लगे हुए हैं और सेमिनार में भी वो बहुत हेल्प करते हैं और अब खुद इसमें जुड़ गए हैं और लोगों को यही ये बोलते हैं कि आप न्यू डाइट सिस्टम से ही अपना डायबिटीज आप भगाए, क्योंकि उनका सेंसर उसे बताता है कि रॉ डाइट कितना उत्तम है। तो अभी उन्होंने 4 महीने तक पूरे कंप्लीट वो रॉ डाइट पे रहे और उनका शुगर बिल्कुल चला गया। इस मौसम में उन्होंने रोज की 20 आम मैंगोस खाते थे, वो रोज की 20 मैंगो। वो डायबिटिक पेशेंट थे, अब नहीं है। रोज की 20 मैंगो, पूरे दिन में वो सिर्फ केवल मैंगो का ही कल्प करते हैं समझो। और उनकी सारी तकलीफें चली गई है और आज वो खुशी खुशी फ्रूट्स वेजिटेबल्स और ये सब खाते हैं और बोलते हैं। उनका बेटा भी अमेरिका में वो पढ़ रहा है, ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रहा है, उनकी बेटी भी डॉक्टर है। तो बहुत एजुकेटेड फैमिली है और उनका बेटा तो कंप्लीट रॉ वीगन है और वो तो उधर प्रचार प्रसार भी उसका ही करता है कि आप रॉ वीगन बनिए। तो आज वो डॉक्टर भावेश भाई भी ये अपना रहे हैं। आज हमारे यहाँ भी दोपहर को 1 बजे उनका मीटिंग है और सब डायबिटिक पेशेंट आने वाले हैं जो हमारे सेमिनार में आए थे और जिन्होंने सेंसर लगाए हैं। महीना हो चुका है और हर संडे को हम उनको फॉलो अप में बुलाते हैं। उनका शुगर अब समझो बिल्कुल चला गया है और सभी पेशेंट इतने खुश है कि आज बोलते हैं कि हम अब पेशेंट नहीं है, हम अब एक आम इंसान हो गए हैं। उनका शुगर चला गया, जीवन में कितना आनंद है। शुगर हम जितना सोचते हैं कि ये एक राजरोग है, कभी नहीं जाएगा, ऐसा कभी मत सोचिए। ये हमारी कुंडली में हमने लिखा है तो हम ही इसे निकाल सकते हैं आहार बदल के। तो केवल हमें आहार को बदलना है और इसके अंदर हमें जो छोटा ख्याल रखना है, छोटा ध्यान रखना है कि हमें कौन से जूसेस और कैसे हमारे शुगर को भगाना है। तो इसका भी एक कॉमन डाइट प्लान दिया हुआ है जो पुनीता जी आपको सेंड करेंगे। तो अगर आप उस हिसाब से अपना डाइट प्लान पूरे दिन का रखेंगे, आपका शुगर केवल 5 दिन में चला जाएगा। आपका ब्लड प्रेशर केवल 5 दिन में आपको ये नॉर्मल होके दिखाएगा और आपका इंसुलिन, आप जो भी टैबलेट्स लेते हो वो भी आपकी चली जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन देखो कभी भी ऐसी इतनी जल्दबाजी मत करना, क्योंकि डायबिटीज, थायराइड और ये ब्लड प्रेशर यानी बीपी की गोली एकदम से कभी बंद नहीं करनी चाहिए, उसको ग्रेजुअली कम करके बंद करना है। तो आप अपने डॉक्टर को भी साथ में ही रखना, क्योंकि आपका जैसे ही लेवल डाउन होता जाएगा आपके डॉक्टर आपको खुद बोलेंगे कि अब आप गोली कम करो, उसके पावर कम करेंगे। तो उनका एमजी जब कम करेंगे फिर आहिस्ता आहिस्ता वो आपको खुद कम करवाएंगे आपकी गोलियां।
और ऐसे आप ग्रेजुअली अपनी दवाई बंद करेंगे तो आपको बिल्कुल तकलीफ भी नहीं होगी और आपका बीपी, डायबिटीज और थायराइड, जो भी आपके ये 3 जो रोग है, उसमें ग्रेजुअली हमें दवाई को कम करके बंद करना पड़ता है। और फिर हमेशा के लिए अगर बंद रखना है तो आपको आपके खून को पूरी तरह से साफ करना पड़ेगा। खून को सफाई के लिए 4 मंथ लग जाते हैं, चातुर्मास लग जाते हैं। हर धर्म में चातुर्मास का महत्व इसीलिए है क्योंकि हमारे बॉडी के जो भी सेल्स है उसे जब हमें एक्टिव करने हैं पूरी तरह से, तो उसके लिए हमें हमारा खून साफ करना बहुत जरूरी है। इसलिए हमें जिससे ज्यादा क्लोरोफिल, आयरन और हीमोग्लोबिन हमारा जिससे बढ़ता है, वैसे जूसेस अगर हम ज्यादा लेंगे और विटामिन सी वाले जूसेस यानी नींबू पानी और साइट्रस फ्रूट के जूस अगर हम ज्यादा लेते हैं तो हमें काफी हमारे खून को सफाई करने में हमें बहुत हेल्प मिल जाती है। और जूस से जितनी जल्दी सफाई होती है उतनी जल्दी सफाई और किसी आहार से नहीं होती है, क्योंकि जूस यानी डायरेक्ट हमारा, जैसे हमें कंपाउंड सफाई करना है तो हम झाड़ू और पोछे से कितना सफाई कर पाएंगे। अगर हम बाल्टी भर के पानी डालेंगे तो कोने कोने से मिट्टी निकल आएगी और अच्छे से सफाई होगी। तो जूस यानी बाल्टी भर के पानी, ये हमारे कोने कोने से सफाई करेगा। हमारा पुराना मल जो आज तक हमने ब्रेड, बर्गर, पिज्जा वगैरह खाए हैं, उसको, चीज, बटर, पनीर जो भी हमें अंदर जो जम चुका है, हमारे पेनक्रियास इसी वजह से उसके ऊपर इतना पुराना मल जम गया है कि वो अंदर से इंसुलिन नहीं दे पा रहा है। वो देना तो चाहता है लेकिन उसके ऊपर इतने लेयर बन गए हैं जो हमें हटाने हैं। तो हमें ये जूसेस और खास करके रेचक जूसेस और एनिमा का प्रयोग हमें करना ही पड़ेगा। जितना हम उस जूस पे जाएंगे हमारा पुराना मल पिघलता जाएगा और पेनक्रियास के ऊपर से पुराना मल जब हट जाता है तो उसका वर्क शुरू हो जाता है इंसुलिन देने का और आपका शुगर चला जाता है। कितना आसान है। तो जीवन को जितना सरल बनाना है वो हम ही बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें ये बनाना नहीं आता, वो बनाना नहीं आता, रॉ डाइट में टाइम बहुत जाता है, ये बहुत कॉस्टली है। मत सोचिए, कुछ भी कॉस्टली नहीं है। हमारे सेहत से ज्यादा और कोई कीमत नहीं। हमारे शरीर की कीमत जितनी है उतनी कीमत ये फल फ्रूट की नहीं है। जब आप अपने शरीर का अंदाजा निकालोगे तो सच पूछो तो ये 500 करोड़ का एक अपना ये शरीर है, जिसका एक एक अंग का अगर हम वैल्यूएशन निकालने जाए तो हमें पता चले कि अगर हमारे शरीर को जब भी कोई रोग आ गया तो क्यों आया। 84 लाख योनि में किसी भी पशु, प्राणी, पक्षी को ये बीपी, डायबिटीज, थायराइड, अस्थमा, कोरोना क्यों नहीं हुआ और इंसान को ही क्यों हुआ? कारण एक ही है, जिसने पराई माँ का दूध पिया उसको ही कोरोना हुआ। और ऐसे सब वायरस इंसान को ही छूते हैं। तो हम अपने आप को, हम ये नहीं कहते कि हम जानवर की तरह जिए। हम, परमात्मा ने हमें मनुष्य का अवतार दिया है, तो क्यों ना हम अपने जीवन को रंगीन बनाएं और इतने झूम के जिए कि हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए जैसे पुनीता जी और दीपक भैया ने अपना जीवन इसमें रंग दिया है और लोगों के लिए समर्पित हो गए हैं। आज उन्होंने अपना जीवन मंत्र यही बनाया कि मानव सेवा ही माधव सेवा है। तो सच में उन लोगों ने बहुत 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 तपश्चर्या की है, तब वो अपना वक्त और आपके पीछे वो अपना पूरा समय लगा देते हैं कि नहीं, उनको ये भावना कब से जगी कि वो दादा भगवान से तो जुड़े हुए थे, उनके अंदर एक आध्यात्म तो पड़ा हुआ था, लेकिन उसको जागृत किया किसने? तो आहार ने। जब उन्होंने ये आहार अपनाया तो उनको लगा कि जब हमें इतना बेनिफिट है तो क्यों ना हम पूरी ये जो मनुष्य जाति है उनके लिए हम ये प्रयत्न करें। तो आज वो मीडिया से जुड़े और आज उन्होंने
इतना ये जो भी इसका मशाल है, जो दर्द रहित दुनिया, दवा रहित दुनिया, जो हमारे चौहान साहब, हमारे गुरुजी का जो ख्वाब है, उसको पूरा करने के लिए आज उन्होंने ये बीड़ा पकड़ा है कि नहीं, कुछ भी हो जाए, हमें तो ये सिस्टम से ही लोगों को निरोगी बनाना है, क्योंकि ये सिस्टम में ही एक ऐसा पावर है जो दर्द रहित और दवा रहित दुनिया बना सकता है। और ये कोई छोटा मोटा ख्वाब नहीं है। आप सोचिए तो सही, आपके पड़ोस में, परिवार में, समाज में, आप जहां भी रहते हैं वो सिटी में, केवल एक घर तो आप नॉक करके दिखाइए जो बिना दवाई के जीता हो। आज हर घर में दवाई है, आज हर घर में डायबिटीज है और हर कुटुंब में कैंसर है। अगर हमें ये बीमारियां मिटानी है तो हमें ये सिस्टम अपनानी ही पड़ेगी, क्योंकि हम अगर अपने घर में ये सिस्टम अपनाते हैं तो हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, हमारे बच्चे हमारी धरोहर है। उनको हमें अगर कुछ सिखाना है तो पहले हमें खुद को निभाना पड़ेगा, खुद को अपनाना पड़ेगा। अनुभव से बड़ा कोई गुरु नहीं है। और जब हम खुद अनुभव करते हैं और अनुभूति करते हैं, अनुभव और अनुभूति यही हमें सब कुछ सिखाता है। तो जब आप अनुभूति करेंगे कि नहीं, इससे मेरा रोग गया, तो आप खुद ब खुद इसमें पुनीता जी और दीपक भैया की तरह आप भी जुड़ जाएंगे। तो जब हम इस सिस्टम से जुड़ने के लिए सोचते हैं तो इसमें सोचना नहीं पड़ता है, अपने आप जुड़ जाते हैं। और हम जुड़ जाते हैं और जब ऐसे जुड़ते जुड़ते एक कारवां बन जाता है और ये सिस्टम माउथ पब्लिसिटी से आगे जाता है और आपका रोग अवश्य जाएगा। केवल आप एक ये रेसिपी जो है पूरे दिन की, कि आपको कैसे जूस डाइट फॉलो करना है, कौन से जूसेस आपको ऑफिस में साथ में लेके जाना है, आप इंसुलेटेड बॉटल में लेके जाएंगे तो उसकी क्वालिटी भी बनी रहेगी। क्योंकि हम कहते हैं कि चलो जूसेस फ्रेश पीने बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये हमारे लिए कैसे मुमकिन रहेगा जब हम वर्किंग है। तो वर्क में तो हम इतना नहीं वक्त निकाल पाएंगे। तो ऐसे ही हम आपके यहाँ अगर नारियल पानी, नींबू पानी या साइट्रस जूस जो इजीली और आपका वक्त इसमें कम लगे, ऐसी चीजें आप अपनी ऑफिस में भी रख सकते हैं। जैसे हैंडी जूसर है संतरा मौसम्बी का, तो ऐसा एक हैंडी मशीन आप अपने ऑफिस में कहीं रख सकते हैं और आपको केवल घर से फ्रूट्स ले जाने हैं, जिसमें आपका वक्त कम जाता है। 5 मिनट में आप बहुत बड़ा गिलास, 500 ml जितना गिलास आप जैसे संतरा मौसम्बी का जूस निकाल के पी सकते हैं। तो ऐसा एक हैंडी मशीन आप अपने ऑफिस में रख सकते हैं और 5 मिनट में आपका वक्त, क्योंकि उधर बहुत कीमती है, तो आप 5 मिनट में यहाँ से धो के अगर संतरे लेके गए हैं, बस काट के उसको फटाफट दबा के उसका जूस निकाल लीजिए, मशीन धो के रख दीजिए और आप अच्छे से बड़ा गिलास भर के जूस पी लीजिए। आपका काम कितना आसान हो जाएगा, फ्रेश का फ्रेश, और आपको वक्त भी आपका बर्बाद नहीं होगा और आपको साइट्रस जूस पीने से काफी अच्छा एनर्जी भी बहुत फील होगी। तो ऐसी कुछ रेमेडी आप साथ में रखिए कि जिससे आप अपना वक्त भी बचा पाए और अपना पेट भी भर पाए। तो ऐसी चीजें आप साथ लेके जाए। कोकोनट मिल्क की स्मूदी वगैरह बना के आप इंसुलेटेड टिफिन में ले जा सकते हैं। मैंगो शेक, चीकू शेक, बनाना शेक, आप कैसे भी शेक्स, आपके यहाँ जो भी फल फ्रूट मिलते हैं वैसे आप शेक बना के लिए जाइए। जब दोपहर को कड़ी भूख लगती है और आपका लंच ब्रेक होता है, तब आप ऐसी थिक आइटम यानी कोई भी थिक शेक लेंगे तो आपका पेट इतना भर जाएगा कि जैसे आपने दाल चावल सब्जी रोटी खाए हैं। जो भी आप शेक बनाए उसमें आपका ताजे फल काट के डाल देंगे तो अच्छे से आपका एक डेजर्ट तैयार हो जाएगा। उसमें थोड़े ड्राई फ्रूट्स और ये पंपकिन सीड, सनफ्लावर सीड वगैरह कुछ भी आप डाल देंगे, इतना रिच आपका शेक बन जाएगा और आपका पेट बहुत अच्छे से भर जाएगा। तो आप ऐसे अपने जीवन को
आसान बनाइए और अपने रोग को भगाइए। ये सिस्टम से हम सारे रोग भगा सकते हैं। मैं भी बहुत भटकी हूँ, एलोपैथ, आयुर्वेद, होम्योपैथ, घरगथ्थू नेचुरोपैथ, डोसी वैदा, मैं बहुत कर चुकी हूँ। 5 सालों तक मैं भटकी हूँ, लेकिन मुझे रास्ता नहीं मिला। मैंने जो भी किया, जितनी देर करूं उतनी देर आराम, एक दिन भी दवाई छूट गई तो फिर से बेड में। ये क्या अपना जीवन है? हमने, परमात्मा ने हमें जो जीवन दिया है, ये बेड में सोने के लिए थोड़े ना दिया है। अरे हमें तो औरों के लिए जीना है। अपने लिए जी लिए, 40 तक जिए वो अपने लिए, लेकिन 40 के बाद जब अपना जीवन, हमारे बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, तो हमारा जीवन औरों के लिए होना चाहिए। परमात्मा ने हमें किस लिए भेजा है पृथ्वी पे, हमें ये भी तो सोचना है। तो हमारा जीवन, हमें ऐसे हमारा वक्त जितना निकाल पाए, हम ये नहीं कहते हैं कि आप पूरा वक्त इसमें बिताओ, लेकिन अपने जीवन का जो भी हमारा दिन है, एक जैसे 24 घंटे का है, तो उसमें से केवल 2 या 3 घंटे भी आप ये सिस्टम के लिए निकाल पाओगे तो भी आप कितना परमार्थ करोगे। अपने जीवन का 10वां आप निकाल रहे हो, तो उसके लिए परमात्मा आपको सपोर्ट करेगा। ये सिस्टम आप अपना के देखिए, आपको परमात्मा, आपको केवल 1 कदम चलना पड़ेगा, 10 कदम वो परमात्मा सामने से चल के आएगा। और परमात्मा कोई ऐसे पुष्पक वाहन में बैठ के आएगा, ऐसा नहीं है। परमात्मा किसी भी स्वरूप में आता है। जैसे पुनीता जी और दीपक भाई है, तो वो परमात्मा का ही स्वरूप है, तभी तो वो हमें मिले हैं। तो ऐसे परमात्मा के स्वरूप में हमें ऐसे इंसान मिलते जाएंगे जो हमें सपोर्ट करेंगे और हम अपना जीवन निरोगी कर पाएंगे। हमारा जीवन अगर निरोगी है तो सोचिए आप कितना काम कर पाओगे। हमारे पैसे अगर दवाइयों में नहीं जाते हैं तो कितनी अच्छी जगह पे आप ये काम कर पाएंगे, आप ये सेमिनार्स कर पाएंगे और लोगों को आप इसमें जोड़ के उनको निरोगी बना पाएंगे। उनके आशीर्वाद से, उनके ब्लेसिस से आपका जीवन, आपका बैंक बैलेंस इतना भर जाएगा कि आपको पिछली उम्र में जो आपने बैंक बैलेंस जमा किया है कि कहीं हमें दवाई को या हॉस्पिटल जाने की जरूरत पड़े, तो इसके लिए हम बैंक में बैलेंस रखते हैं कि पिछली उम्र में हमें जरूरत पड़े तो हमें तकलीफ ना हो। लेकिन पिछली उम्र में हमें तकलीफ पड़े ही क्यों? ये पैसे हमने थोड़े ना डिलक्स रूम में एडमिट होने के लिए जमा किए हैं। ये पैसे तो किसी जरूरतमंद को काम आएंगे। हमारा जीवन बिल्कुल निरोगी हो जाएगा, क्योंकि मैंने भी ये अनुभव किया है और अनुभूति की है। आज हम ही हमारे बच्चे के रोल मॉडल है, तो ही हमारे बच्चे ये सिस्टम पे चलते हैं। तो हमें हमारी धरोहर को अगर बचाना है, ये ब्रेड, बर्गर और पिज्जा है नरक के वीजा, तो इसको जब हमें हटाना है तो हमें हमारे बच्चे को हम अगर इसमें जुड़ जाएंगे तो बच्चे अपने आप जुड़ने वाले हैं। आप अगर सैलेड खाओगे, जूसेस पियोगे, तो बच्चे आएंगे, फ्रीज में तैयार देखेंगे। हम ऐसे नाश्ते ही घर में नहीं रखेंगे, तो ब्रेड ही नहीं रखेंगे, तो बच्चे क्या खाएंगे? जब आप फ्रूट और वेजिटेबल्स ही रखेंगे तो फिर बच्चे भी आपको देख देख के खा लेंगे। तो ऐसे आप अपने बच्चे को भी बचा पाओगे और हमारी जो धरोहर है, जिससे हमें हमारे वंश को आगे बढ़ाना है। हम अगर रोगी है तो हमारा बच्चे भी, हम कहते हैं कि हर जो भी ज्यादातर ये डायबिटीज है या ऐसे रोग है वो जैसे आनुवंशिक होते हैं, बिल्कुल गलत है। ये बिल्कुल सच नहीं है कि कोई भी रोग आनुवंशिक है, क्योंकि खुद मेरे पिताजी डायबिटिक थे। मेरे पिताजी का पूरा परिवार डायबिटिक था, लेकिन सब मेरे चाचा जी और मेरे पिताजी सब लोग डायबिटीज में उन्होंने अपनी जान गंवाई है। तो आज मेरे सगे भाई को डायबिटीज है और मैं और मेरी दीदी ये सिस्टम से जुड़े हुए हैं। हम हर 3 महीने में अपने रिपोर्ट करवाते हैं। हमें शुगर नहीं है, तो हमने सोचा कि कोई भी रोग आनुवंशिक नहीं होता है।
इसको हमें ही बदलना पड़ता है। हम जब सिस्टम से जुड़े और इसमें टिके रहे तो हमें शुगर नहीं आया, क्योंकि हम अभी भी हर हफ्ते में 1 या 2 बार एनीमा करते हैं, क्योंकि एनीमा हमेशा की प्रोसीजर नहीं है। ये एनीमा भी शुरुआत में है कि जैसे 15 दिन या 1 महीना 2 टाइम, फिर 15 दिन या 1 महीना 1 टाइम, फिर 1 हफ्ता ऑल्टरनेट डे, फिर दूसरे हफ्ते में 2 दिन में 1 बार, तीसरे हफ्ते में 3 दिन में 1 बार, हफ्ते में 2 बार का रेशियो आ गया, हफ्ते में 2 बार, फिर हफ्ते में 1 बार। जिस दिन छुट्टी है उस दिन आपको एनीमा करना है। हफ्ते में 1 या 2 दिन अगर आप कंप्लीट रॉ डाइट पे चलेंगे तो जीवन में आपको कोई भी रोग कभी भी वापस नहीं आएगा। हम इंसान हैं, कभी हम पार्टी में गए हैं तो हम मौज मस्ती करेंगे, खाएंगे पिएंगे, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन आज खाया पिया तो कल उसका प्रायश्चित। कल हम अपने घर पे हैं, हमारी जॉब पे है, तो आज आपने खा पी के संडे मना लिया, तो मंडे के, शिव जी के मंडे के दिन आप फास्ट कर लीजिए, हो सके उतना लंबा निर्जल या फिर जूस फास्टिंग पूरे दिन, और उस दिन आप पका हुआ भोजन मत लीजिए, तो आपका बैलेंस हो जाएगा। आपका रोग कभी वापस नहीं आएगा, आपका गया हुआ वेट भी वापस नहीं आएगा। हम इंसान हैं, इंसान की तरह हमें जीना है, और ये सिस्टम में हमें जुड़े रहने के लिए ऐसा नहीं है कि हमें अपने मुंह को ताला लगाना है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ना है। रसाहार, फलाहार, फलाहार से एकाहार, और एकाहार से रिवर्स साइकिल, और रिवर्स साइकिल से फिर एक वक्त के भोजन पे जाना है। और एक वक्त का भोजन अगर हम हमेशा के लिए लेते हैं तो जीवन में हमें कोई भी रोग कभी भी नहीं आएंगे, कोई भी रोग कभी वापस आ ही नहीं सकते, क्योंकि हमारा खुद का अनुभव है। हमने 12.5 साल से इस सिस्टम से जुड़े हैं। आज हम चाहते हैं तो भी हमें कोई रोग नहीं आता है। कोरोना में हमने हमारा एनडीएस सेंटर कभी भी बंद नहीं किया है। कोरोना के पेशेंट आए हैं, हमने कोरोना पेशेंट की जैसे ऐसी सेवा की, हमने उनको ग्रीन जूस दिए हैं। किसी को तो हमने खुद, जो वो एनीमा नहीं कर सकते थे तो उनको हमने खुद एनीमा करवाया है, लेकिन उस दिन हम उपवास रखते थे, एनीमा करते थे, और ज्यादातर हमने रसाहार किया। तो कोरोना पेशेंट को छू के हमने ये सब किया है, तो भी हमें कोरोना नहीं लगा है। कारण एक ही है कि सुबह का फास्टिंग हम कभी भी नहीं चूकते हैं, और सुबह का फास्टिंग के साथ साथ हम, ऐसा लगता है तो एनीमा भी करते हैं, कभी जरूरत होती है तो वमन भी करते हैं खाली पेट। तो ये भी, जो भी हमारे बॉडी को डिटॉक्स करने की जो भी विधि है वो हम करते हैं। और अगर आप एक सेमिनार करोगे तो आपको ज्यादा पता चलेगा कि नेचुरोपैथी में कितना पावर है। हम प्रकृति के इंसान हैं और प्रकृति हमारी माँ है, और वो ही हमें बचा सकती है। तो कोई भी डिसीज है, आप प्रकृति के सहारे आ जाइए, और जैसा हम प्रकृति की ओर चले जाते हैं तो रोग तो अपने आप चले जाते हैं। वो तो हमें हमारी उसकी गोद में सुला देती है, हमें बिल्कुल रोने नहीं देती है। तो आप प्रकृति की ओर चले जाए, और जैसे आपको दीपक भैया और पुनीता जी बताते हैं आप वैसे फॉलो कीजिए। आपको एक कॉमन डाइट प्लान और स्पेशल डायबिटीज का जो रसाहार का जो प्लान है, डाइट प्लान, वो आपको पुनीता जी और दीपक भाई आपको दे देंगे 1-2 दिन में, और आप उसको फॉलो कीजिए। और आप केवल 5 दिन में आपका चमत्कार देखिए कि कैसे आपके इंसुलिन और आपकी दवाइयां आपके डॉक्टर कैसे बंद करवाते हैं। तो अगर आपको कोई सवाल है तो आप पुनीता जी से, मुझे पता नहीं है मेरा वक्त कितना है, मैंने आज बहुत कुछ बोल दिया, कुछ भूल हो गई हो तो माफ करना। मैं चौहान साहब की शिष्या हूँ, और हम लोग ये सब सिस्टम यहाँ पे अपनाते हैं, और हम ये अपना इधर सेंटर भी चलाते हैं। तो आप पुनीता जी से जो भी आपको क्वेरीज है वो आप उनसे भी पूछ सकते हैं, और हमसे भी पूछ सकते हैं। तो सबको प्रणाम, हरिओम। Thank you so much. Thank you so much, Dharti. 8 Welcome. wonderful, Welcome. wonderful. हाँ And जी।
हाँ, थोड़ा सा सवाल आया है, आई एम गोइंग टू आस्क यू। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, मैं देखती हूँ। Can you use these insulins depend on diabetes of 15 years? What is that question? No, if somebody is on the insulin for last 15 years, can you use this diet? Of course. Yes. हाँ हाँ, ये भले आप 15 साल से वो इंसुलिन ले रहे हैं, लेकिन वो लोग ये सिस्टम अपनाएंगे तो उनके सुबह के इंसुलिन तो हफ्ते भर में ही बंद हो जाएंगे। क्योंकि जो भी आप इंसुलिन लेते हो वो केवल आपको भोजन लेना है, इसलिए आपको लेना है। लेकिन सुबह का जो फास्टिंग है वो करना है, तो सुबह के फास्टिंग के वक्त तो हमें इंसुलिन लेना ही नहीं है, क्योंकि इंटेक ही नहीं करना है कुछ, तो इंसुलिन क्यों। और जब इंटेक करना है तो आप इंसुलिन का जो भी आपका पॉइंट है वो थोड़ा कम करके लेना। और इसके लिए आपका जो डॉक्टर ने आपको कहा है कि आपको इंसुलिन कैसे, जैसे आपको जितने पावर का दिया है उसमें आप थोड़ा कम लेना, क्योंकि अब आप जूस लेने वाले हो और रॉ डाइट लेने वाले हो, तो वैसे भी आपका शुगर डाउन जाएगा। तो आपको ऐसा लगे कि आपको चक्कर आता है या आपका शुगर ज्यादा डाउन हुआ है, तो आप ऐसे मीठे फल फ्रूट या जो डेट्स होते हैं वो ही आपके पास रखने हैं। अब आपको बिस्किट्स या चॉकलेट्स या ऐसा कुछ नहीं लेना है। आपको शुगर बढ़ाने के लिए नेचुरल स्वीट फ्रूट्स और आपको ये डेट्स वगैरह ही साथ में रखने हैं। और देखना, नेचुरल डाइट लेने से आपका शुगर लेवल 3 दिन में ही कंट्रोल में आ जाएगा। आप बिल्कुल मत घबराइए, आप ले सकते हैं। धरती बहन, क्वेश्चन आ गया कि मैं किडनी कैसे क्लीन करूं तो मेरी किडनी फंक्शन बेटर, अच्छी तरह से बेटर हो जाएगी। हाँ, किडनी क्लीन करने के जो भी आपको रोग है, अगर आपको क्रिएटिनाइन ज्यादा नहीं है और आपको जूस लेने की कोई ऐसी लिमिट नहीं है कि डॉक्टर ने आपको, जैसे किडनी पेशेंट को कहा जाता है कि पूरे दिन में 1.5 लीटर ही लिक्विड लिया जाए, यानी पूरे दिन का जो भी मिला के, पानी हो जूस हो, जो भी मिला के 1.5 लीटर लिया जाए। तो अगर जिसको ऐसी लिमिट नहीं दी गई है, तो कोई भी हमारा बॉडी का जो फंक्शन है, जो भी हमारा जैसे किडनी है, लीवर है, लंग्स है, जो भी है, हम चाहते हैं कि उसको हमें क्लियर करना है, तो सबसे बेटर जूस थेरापी है। जूस थेरापी से हमारे सारे ऑर्गन एकदम क्लीन हो जाते हैं। केवल आपको रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए कि आपको केवल 1.5 लीटर ही लिक्विड लेना है। तो आप जैसे हर 2 घंटे में लिक्विड लेते हो, तो इससे हमारा किडनी है, लीवर है, वो सब क्लियर हो जाता है। जैसे नींबू पानी है तो वो हमारी किडनी को क्लियर करता है। लेकिन कैसे? तो नींबू को हमें पूरा छिलके के सहित क्रश करके उसका जूस बना के छान के उसमें पानी आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन ऐसे हम अगर हमारे को बॉडी को वो जूस थोड़ा सा कड़वा लगेगा, लेकिन ये जो नींबू का छिलका है वो एंटी कैंसर है और वो हमें काफी मदद करता है किडनी को क्लीन करने में। उसके बीज भी फायदे करते हैं। कड़वे जरूर लगते हैं, लेकिन नींबू को काट के आप जूसर में या चटनी जार में क्रश करके थोड़ा सा पानी डाल के उसकी पेस्ट बना के फिर उसमें आप थोड़ा, आपको जितना चाहिए उतना पानी आप डाल के हिला के छान लीजिए और उसको आप ले लीजिए। आपको ब्लड प्रेशर नहीं है तो आप उसमें 1 पिंच ब्लैक सॉल्ट डाल सकते हैं। और ब्लैक आप हो सके तो सॉल्ट, बिना सॉल्ट के पिएंगे तो ज्यादा इफेक्ट आएगा उसका। आप नींबू पानी पीजिए और आप देखिए कि आपकी किडनी कितनी क्लियर होती है। तो जितने जूसेस पिएंगे, और वाटर भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप प्लेन वाटर नहीं ले सकते हैं। यानी कि पूरे दिन में आपके बॉडी के अंदर 3 लीटर जितना जैसे लिक्विड और पानी सब मिला के जाएगा, तो आपका
यूरिन ज्यादा पास होगा और यूरिन अच्छे से पास हो जाएगा तो आपकी किडनी बिल्कुल क्लीन हो जाएगी। और उसके लिए अगर आपके यहाँ मकाई के भुट्टे मिलते हैं, कॉर्न, वो उसके अंदर जो उसके गोल्डन हेयर होते हैं, हाँ 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 हाँ, वो आप इकट्ठा कीजिए और 500 ग्राम जितने आप गोल्डन हेयर लीजिए, उसको आप छन्नी में डाल के धो लीजिए और फिर आप उसको उसके अंदर 2 गिलास पानी डाल के उसको उबालिए और उबाल के उसका 1 गिलास हो जाए तब तक आप उबालिए और फिर उसको हल्का सा वार्म हो जाए, यानी कि हमारे पीने के लायक हो जाए उतना गरम हमें वो छान के पी लेना है। ये किडनी और लीवर दोनों क्लियर करता है। इससे आपका यूरिन भी देखना थोड़ा ठीक आएगा, पीला आएगा और आपका यूरिन ट्रैक पूरा क्लियर हो जाएगा और उससे आपको ये जो लीवर और किडनी के फंक्शन है वो आपके हफ्ते भर में बिल्कुल क्लीन हो जाएंगे। तो आप ऐसे कर सकते हैं। उसका जो भी गोल्डन हेयर है, हाँ, मैं दूसरी चीज करवाता हूँ, मैं फास्टिंग करवाता हूँ। फास्टिंग से भी मैं किडनी और लीवर क्लीन करवाता हूँ। हाँ हाँ, फास्टिंग से तो होता ही है, ये बात निर्जला सही है। हाँ जी, बोलो। हाँ जी। अनदर क्वेश्चन इज फॉर जो हेयर है ना, बाल खरते हैं ना, गिरते हैं, हाँ जी, सो इट्स लाइक सो मच हेयर, सो उसके लिए कुछ है आपके? कम करना, वो हेयर गिरने का कम करना है। हाँ हाँ, तो बाल अगर आपके झड़ते हैं तो जब तक आपके बॉडी में टॉक्सिन्स है तब तक बाल झड़ेंगे, फिर आपके बाल झड़ना कम हो जाएंगे। अगर आप स्लो जूसर के नीट जूस पीते हो, ग्रीन जूस भी अगर आप जैसे हमारे कुविंग्स वगैरह जैसे जूसर है, तो कुविंग्स में अगर आप स्लो जूसर में भाजी का जो भी हम हरी पत्तियों का जो जूस निकालते हैं वो नीट पीते हैं तो हमारे बाल झड़ने कम हो जाते हैं। आपके यहाँ अगर ड्रम स्टिक के पत्ते मिलते हैं, हाँ, पत्ते नहीं मिलते तो मोरिंगा उसके पाउडर, हाँ पत्ता मिलता है, नहीं मिलता है तो उसका पाउडर और कड़ी पत्ता, तो बस ये 2 चीज है जो जिसकी कड़ी पत्ता की हम चटनी भी बना के खा सकते हैं और जूस भी बना के पी सकते हैं। और ऐसा तेल भी हम लोग बनाते हैं यहाँ पे इंडिया में कि जिससे बाल झड़ने बिल्कुल कम हो जाते हैं। तो ऐसा ऐसा एक दही शैम्पू और ऐसा तेल भी हम लोग बनाते हैं। और ज्यादा से ज्यादा जो भी हमें समझना है वो है आहार। तो आहार जब आप ऐसा लेना शुरू करेंगे जैसे नारियल का दूध या नारियल की चटनी, तो कोकोनट हमारे बालों के लिए बहुत उत्तम होता है। तो आप अपने बालों में जैसे कोकोनट का मिल्क अगर आप घर में निकालते हो अपने मिक्सर में, तो पहला वाला गाढ़ा मिल्क जब आप निकालते हो वो मिल्क छान के आप एक बार छाना छन्नी में और दूसरी बार आप हिलाए बगैर आप ऐसे ऊपर ऊपर से दूसरी बार छान के उसको आप फ्रीजर में आधे घंटे या 1 घंटे के लिए रख दीजिए। उसके ऊपर पूरा लेयर आ जाएगा मलाई का। वो मलाई के लेयर को आप एक छन्नी से या किसी छेद वाले बर्तन से आप अलग कटोरे में ले लीजिए। वो उसका बटर है कोकोनट का, और वो बटर उसमें आप जरा सा लेमन और ये कड़ी पत्ता क्रश करके या कड़वा नीम आपके यहाँ जो भी अवेलेबल है वो क्रश करके, और एलोवेरा मिलता है तो एलोवेरा, और ये सब डाल के आप अपने बालों में ये थोड़ा सा कोकोनट का जो बटर है वो और ये सब चीजें अंदर मिला के आप बाल आपको जब वॉश करने हैं उससे पहले आप रुई से या हाथ से कैसे भी आप बालों में स्काल्प में लगा देंगे। और फिर आप 2 घंटे या 3 घंटे के बाद आपको जब भी वक्त मिले आप वॉश कर लीजिए। उससे भी आपके बाल झड़ने कम हो जाएंगे। और आप जितने जूसेस ज्यादा लेंगे उतना आपका बॉडी अच्छे से डिटॉक्स होएगा, और जैसे ही आपका बॉडी डिटॉक्स होएगा आपके बाल झड़ने बिल्कुल बंद हो जाएंगे और नए बाल आएंगे। हमारे प्रमेश भाई वेद करके हैं, 67 इयर्स ओल्ड है वो,
और उनका डायबिटीज भी काफी पुराना था, वो भी चला गया। कब का 10 साल हुए। और वो इधर कैलकाटा में और सब जगह अफ्रीका में सब जगह सेमिनार्स करवाते हैं। और वो इस सिस्टम से जुड़े हैं। और उनके बाल इतने रफ थे कि वो खुद ऐसा बोलते थे कि इतने कड़क बाल है कि ऐसा लगे कि जैसे खिलौने के बाल भी सॉफ्ट होते हैं। मेरे बाल इतने हार्ड थे। और उन्होंने ये कुविंग्स के स्लो जूसर के जूसिस पिए और 6 महीने में उन्होंने उनके 2 फोटो भेजे हैं, फोटोज, जिसमें एक में कितने हार्ड बाल है और ये नीट जूस पीने से उनके बालों का ग्रोथ, उनके बाल इस उम्र में काले हुए और एकदम सिल्की हो गए, सॉफ्ट। तो उनके 2 फोटोज भी है, वो आप चाहेंगे तो हम आपको भेज सकते हैं। हाँ जी। Biju, question? No, I think We should conclude that. thank you so much, Amna. Yeah. Mukesh bhai, every Dharti Ben, every successful woman, there is a successful man behind him. So I would like to introduce your husband, Mukesh bhai. Mukesh bhai, please share your experience with us. And we appreciate it's very early in the morning that you have joined us. इतना जल्दी सुबह में उठ के आपने हमने ज्वाइन किया, आपका बहुत बहुत आभार। आप आपका थोड़ा एक्सपीरियंस हमें शेयर करें भैया। जी सर, मुकेश ठक्कर हियर। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ, मैं मुकेश ठक्कर हूँ अहमदाबाद से और 12.5 साल से हम लोग भी न्यू डाइट सिस्टम से जुड़े हुए हैं। और जब हमने शुरू किया तब यहाँ अहमदाबाद में बहुत कम लोग थे जो करते थे, हम लोग किसी को जानते नहीं थे। हमने एक सिर्फ बुक पढ़ के और चौहान साहब की डीवीडी देख के ऐसे ही शुरू कर दिया था न्यू डाइट सिस्टम। और शुरू में तो जब मैंने शुरू किया तब मेरी वाइफ भी मुझे शुरू के 1 वीक में तो सपोर्ट नहीं कर रही थी, क्योंकि उनको लगता था कि मुझे चाय पीने का जो आदत है वो मैं रोज के 25-30 कप चाय पी जाता था। ओहो, तो उनको ऐसा लगता था कि ये बंदा मुझे छोड़ सकता है, चाय नहीं छोड़ सकता। तो उनको भरोसा नहीं था कि ये बंदा कर पाएगा। तो उनको बोला वो तो 2-3 दिन में वापस चाय पे आने वाला है। तो उसने बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया। तो मुझे तो, लेकिन जो चौहान साहब ने जो अपने लेक्चर में जो बोला था कि चाय जो है वो टोबैको और लिकर से ज्यादा खराब है, तो मैंने सोचा कि भाई मैं तो लिकर पीने वालों को सबको। हेलो, Yes, please continue. Go ahead. हेलो, Go ahead. Go ahead, मुकेश भाई, go ahead. चालू रखो। तो मैं तो लिकर पीने वालों को और टोबैको खाने वालों को गालियां देता हूँ, और मैं तो उससे भी ज्यादा खराब चीज मैं रोज यानी 25-30 कप चाय पी जाता हूँ। तो मुझसे तो बुरा आदमी कोई दुनिया में नहीं है। तो उसी वक्त रात को मैंने ये उनका जो डीवीडी पे जो मैंने लेक्चर सुना, तो उसी वक्त मैंने तय कर दिया रात को कि कल से अब ये सब गटर पानी सब बंद। तो दूसरे दिन से ही हमने चाय ये पीना सब छोड़ दिया। तो उनको लगता नहीं था कि भी ये बंदा कर पाएगा, लेकिन उस दिन के बाद हमने चाय की ओर देखा भी नहीं है और हमारा चाय का जो व्यसन था वो बिल्कुल छूट गया। और जो भी मतलब कि जो भी हमारा प्रॉब्लम था वो चाय के हिसाब से, यानी डेयरी प्रोडक्ट ज्यादा इंटेक करने के कारण मुझे जो भी मेरे लंग्स का जो प्रॉब्लम था, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम था, वो सब मेरा प्रॉब्लम सब चला गया। और शुरू में तो मैं घर पे से मुझे सपोर्ट नहीं मिलता था, तो मैं बाहर जाके सब जूसेस वगैरह ले लेता था। फिर रात को सिर्फ मुझे घर में मैं वेजिटेबल सूप लेता था। और
ऐसे ही लेकिन मुझे सबसे ज्यादा डर लगता था एनिमा से, यानी भूत प्रेत यानी कोई जंगली जानवर से भी ज्यादा मुझे लगता था कि मुझे एनिमा नहीं लेना है। कि तब हमको कोई समझाने वाला, ऐसे जैसे आपको जैसे समझाने वाले अब काफी सारे लोग पूरी दुनिया में हो गए हैं। ऑनलाइन ये जूम मीटिंग होती है, रूबरू में लोग समझाते हैं, प्रैक्टिकल आपको सब समझाते हैं। तो ऐसा हमारे साथ नहीं था। तो मैंने ये सिस्टम तो शुरू किया, लेकिन 27 दिन तक मैंने एनिमा नहीं किया था। तो फलस्वरूप हुआ क्या कि 27 दिन के बाद मुझे बहुत सर्दी, जुकाम, बुखार, यानी 104 मुझे बुखार था, वॉमिटिंग, सब डायरिया, सब इतना हुआ कि मुझे लगा कि भाई अब तो ये हमारी विकेट गई, मैं अब नहीं बच पाऊंगा। मेरे भाई को बोला मुझे तो हॉस्पिटल में भर्ती करो, मैं बचूंगा नहीं। इतनी मेरी खराब हालत हो गई थी कि भाई मुझे सिस्टम छोड़ के मुझे वापस हॉस्पिटल में जाके भर्ती होके मुझे ठीक होना था। लेकिन मेरी वाइफ ने उस वक्त प्रेशंस रख के उन्होंने बोला कि भाई हमको, जिन्होंने भी हमको पूछ के किया है सिस्टम, तो हम उनसे पूछ लेते हैं कि भाई ऐसा हुआ है तो क्या करें। तो उसके पापा के फ्रेंड का लड़का है, उनको पूछ के हमने किया था। उन्होंने बोला कि भाई आपके रोग गए, आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप चौहान साहब का कांटेक्ट करो। चौहान साहब का फिर हमको फोन किया मेरी वाइफ ने, तो साहब जी ने बताया कि भैया सिस्टम में क्या कर रहे हो। तो क्योंकि ऐसे सुबह का 6 घंटे का फास्टिंग है, जूस पीते हैं और रात को सिर्फ वेजिटेबल सूप लेते हैं, और 4 दिन से बुखार है, 104 बुखार है, कुछ लिया नहीं, पानी की बूंद भी नहीं ली, फिर भी बुखार नहीं उतर रहा है। तो साहब ने बोला कि वो एनीमा किया आपने। तो मेरी वाइफ ने बताया कि नहीं, एनीमा के बारे में तो हमें कुछ मालूम ही नहीं। क्योंकि एनीमा की बात की और मैं फिर और जोर से डरने लगा कि भाई क्या करेंगे। साहब ने बोला एनीमा तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि बोला एनीमा के बारे में मुझे मालूम नहीं है, तो कि एनीमा का कैसे करना है। तो साहब ने पूरा समझाया एनीमा के बारे में, और कि भाई हमारे पास तो है नहीं। तो चौहान साहब ने उसी वक्त अरेंजमेंट भी कर दिया और हमको मिल भी गया तुरंत आधे घंटे में। तो एनीमा करने के बाद जो मुझे 104 बुखार था, मैं उठ भी नहीं पाता था, मुझे एनीमा भी मेरी वाइफ ने करवाया। तो 5 मिनट में तो यानी आधा पॉट भी नहीं गया होगा, और इतना कचरा निकला कि मैं खुद सहन नहीं कर पाता था उसकी जो दुर्गंध जो है। और जो 104 बुखार था, 2 ही पॉट में मेरा बुखार हो गया 101। मेरे साहब जी को फोन किया कि भाई एनीमा किया और अभी अच्छा है, 104 वाला बुखार 101 है। फिर सर जी ने बताया कि भाई अभी आप उनको वमन करवाओ, वार्म वाटर करके उसके अंदर सेंधा नमक, हल्दी वगैरह डाल के उनको पिलाओ। फिर मैंने आधा गिलास यानी गिलास पानी पिया, और इतना उसके अंदर से कड़वा और खट्टा उतना पित्त निकला कि मेरा टेम्परेचर बिल्कुल तुरंत यानी नॉर्मल हो गया। यानी बुखार बिल्कुल, जो मैं ठीक से बोल भी नहीं पाता था, उठ भी नहीं पाता था, वो मैं घर में दौड़ने लगा। यानी एनीमा से जो लोग डरते हैं, सिस्टम करते हैं और एनीमा नहीं करते हैं, वो उनको मैं रिक्वेस्ट यही करूंगा कि आप एनीमा करेंगे तो आपकी आधी यानी जो अच्छी शुरुआत है ना, वो आधी सफलता तुरंत मिल जाती है। तो एनीमा से डरे बगैर अगर आप पहले दिन से ही आप आज से एनीमा शुरू करो, कल से कच्चा खाओ, तो आपको आधी सफलता, 50% सफलता तो आपको पहले दिन ही मिल जाएगी। मुकेश भाई एक क्वेश्चन है, आप हमें आपकी जो सेमिनार आप कर रहे हैं वहाँ हमारे काफी मेंबर्स को आना है, तो हमको कैसे आपकी इंफॉर्मेशन मिलेगी तो वो लोग यहाँ से जो हमको हमारे साथ जुड़ सकेंगे। और दूसरी भी चीज मैं वो बताने वाला हूँ मेरे मेंबर्स को कि हम लोग यहाँ से 30 से 40 लोग को एनआरआईज को लेके हम आपके पास आ रहे हैं। हमको 10 दिन की शिविर करनी है आपके साथ वहाँ अहमदाबाद में, आपके और धरती बहन के साथ। तो वो हम प्लान कर रहे हैं। तो
विंटर इज बेटर एंड नियर द क्रिसमस टाइम इज बेटर, सब लोग को छुट्टी मिलती है वो टाइम पे, तो वो टाइम आप देख के हमको बताना कि कभी आप कर सकते हो, तो हमको आपके साथ जुड़ना है। नहीं, आप डेट आप जो भी बताओ और लोकेशन, हम आपको 3-4 लोकेशन शेयर करेंगे, उसके वीडियो शेयर करेंगे। जरूर जरूर और फिर आप डिसाइड करना। हाँ, ओके और ऐसे हम लोग अरेंज कर सकते हैं। सो या तो हमको भेजना, और आपकी इजाजत हो और धरतीबेन की इजाजत तो हम आपका फोन नंबर भी लगा देंगे हमारी वेबसाइट पे, तो पीपल आपके कॉल भी डायरेक्ट कर सकते हैं, आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। जी जी जी। हाँ, थैंक यू जी, थैंक यू so थैंक यू much. वेरी मच फॉर यू एंड धरतीबेन टू कम एंड शेयर विद अस। हमको बहुत ही अच्छा लगा, और आपको हम बुलाते रहेंगे, क्योंकि अब काफी पॉजिटिव इंफॉर्मेशन आ रहा है, चैट में आ रहा है, आपको वो लोग को बहुत ही मजा आई आपको सुन के। तो बाद में आपको पास कुछ है दूसरा कुछ शेयर करने के लिए? No, thank you so much. Now everyone can open the unmute and they can talk to each other. Yeah, and just say hello to everyone. Yeah. Hello. Thank you, sir. Thank you. Thank you, Deepak bhai and Deepak bhai. Punita ben. Thank you. Thank you. Thank you for Sydney's answer. धरती बहन, एक छोटा सा क्वेश्चन है। Yes, I did. धरती बहन, धरती बहन, ट्राइग्लिसराइड लेवल थोड़ा ऊंचा चला गया है हमारी फैमिली में एक मेंबर का। लेक्चर से यूट्यूब पर છે, यूट्यूब पर आई हैव सीन वन लेक्चर ऑन वेट लॉस। हाँ, that's okay. Just one second. किरण बेन, आपका क्वेश्चन कंटिन्यू करो। हाँ, मैं पूछ रही थी कि हमारी फैमिली में एक मेंबर का ना ट्राइग्लिसराइड लेवल काफी ऊंचा हो गया है, 150 से 180 हो गया है, तो उनके लिए कोई खास ऐसा जूस या खास डाइट which will help in speedy lowering down of this level? साइट्रस जूस। अच्छा, सिट्रस का जूस ले लो अपना, मौसम्बी है, संतरा है, कोई भी फ्रूट, नींबू, फ्रूट है उसका फ्रूट ले लो, इवन अपना अनानास है, कोई उसका जूस ले सकती हो। तो दूसरा पाइनएप्पल, हाँ, ऐसे सब अलग अलग जूसीस आप साइट्रस जूसीस लेंगे ना, उससे आपका खून बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, और ट्राइग्लिसराइड जो भी आपका बढ़ा हुआ है वो भी आपको काफी नीचा जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको कंप्लीट जूस थेरेपी पे जाना पड़ेगा। अच्छा। और ना रह पाए तो केवल आप जूस और फ्रूट्स यानी कि रॉ डाइट पे ही रह सकते हैं। उसमें दल वाली चीजें नहीं खानी है, केवल जूसी चीजें खानी है, ये बहुत ध्यान रखना है। अच्छा। और आप एनिमा अवश्य 2 टाइम करना है। अच्छा, तो मतलब खाना और बिल्कुल कुछ भी नहीं खाना है, जैसे वो रात को 1 टाइम का खाना लेते हैं तो नहीं खाना? नहीं, जब ट्राइग्लिसराइड ज्यादा है, देखो आपको जैसे जब भी कोई भी बीमारी ज्यादा है ना, तो ये ब्रह्मास्त्र है कि आप सीधे रॉ डाइट और रसाहार ऐसा ब्रह्मास्त्र है कि इसका उपयोग आप करेंगे ना, आप 5 दिन में तो झूमने लगोगे। अच्छा। क्योंकि ये डाइट से आपको मेंटली ऐसा होता है कि मैंने खाना नहीं खाया, ये केवल 3 दिन लगता है, क्योंकि हमारे बॉडी को सेट होने में केवल 3 दिन लगते हैं। 72 आवर्स में बॉडी हमारा सेट हो जाता है, और फिर तो आपको जूस पे इतना मजा आएगा, आपको ऐसा लगेगा कि जैसे परमात्मा ने सब कुछ दे दिया। अच्छा, तो आप ऐसे पे आ जाइए। यशवंत भाई, इसके साथ एक बार उनको ग्रीन जूस जैसे वो 1 बजे लेते हैं, उसके बाद फिर उनको सिट्रस फ्रूट जूस दे दें। किरण में 1 सेकंड। यशवंत भाई, गो अहेड। यशवंत भाई, you are muted. हेलो, अनम्यूट प्लीज। हाँ जी। ધરતી બેને मेरा डॉटर YouTube ઉપર લેક્ચર અપલોડ કર્યા છે કઈ કે જે અમે જોઈ શકીએ? છે YouTube માં એમના ઘણા બધા લેક્ચર છે, ધરતીબેનના ઘણા બધા લેક્ચર્સ છે। હા, એ વેટ લોસ ઉપર મેં પહેલા અગાઉ જોયેલું છે એટલે મને યાદ આવ્યું। રાઈટ, ઘણા બધા છે। It's okay, let's ask question. Yeah, let's ask question right now. ઉદયભાઈ, what is the question you? अच्छा, हाँ, बोलो। तो એની લિંક जो है डायबिटीज ऊपर जो है कोई એવું એમનું લેક્ચર, તો I would like to refer to some of my good friends who are diabetic patients.
Go and to there are younger our people. YouTube channel. Go to our YouTube channel. It has a lot of lectures on diabetes. Okay. Okay. Including today's Dhartiben's lecture as well. Oh, thank you. ઉદયભાઈ તમારો જે ક્વેશ્ચન છે ને હા ધરતીબેને મારી જે ડોટર ને છે ને there are lot of બહુ જ એલર્જી છે, ઘણી બધી ફૂડ ની એલર્જી છે. હવે એના વચ્ચે આખું જ્યુસ ડાયટ 15 દિવસ કર્યું હતું, એનીમાં બી લીધેલું, પણ નહીં, હવે પાછું હમણાં બધું ટેસ્ટિંગ કરાયું તો એટલી બધી એલર્જીસ નીકળી છે, આ નહીં ખાવા, આ નહીં ખાવ. શી ઇઝ અગેન સ્ટાર્ટિંગ ધીસ, એટલે એનડીએસ માં રેગ્યુલર નથી, બટ શી ઇઝ નાઉ ઓન ટુ રો ડાયટ. તો what should be the ideal? કારણ કે એને બોઇલ્સ બધા બહુ થાય છે શરીર પર, ઇચિંગ બહુ થાય છે, બોઇલ્સ થાય છે, અને બધું ટેસ્ટિંગ કર્યું તો લોટ ઓફ એલર્જી. એને છે ને ધરતીબેન એને બધી એલર્જી બહુ છે, રેશિસ થાય છે. હા રેશિસ એટલે ઘણી બધી ફોડકીઓ ને બધી બહુ થાય છે, બધી ફોલ્લી થાય છે બોડી પર. હા બરાબર છે. તો સો કઈ એ રો નું કરે છે, છોકરી છે નાની, સો એને શું કરવું જોઈએ આપણે? ને છોકરી નથી, શી ઇઝ 31 years old. ઓકે, अच्छा, तो हिंदी में बताऊं या गुजराती में? हाँ, एनीथिंग, नो प्रॉब्लम. हिंदी में. अच्छा, तो आप उसको ना कड़वे नीम का एनिमा दीजिए और कड़वे नीम का पेस्ट बना के, आपके यहाँ कड़वा नीमड़ा मिलता है नहीं हाँ, मिलता है, मुझे नहीं पता है. मिलता है फ्रेश कड़वा नीम. हाँ, फ्रेश. हाँ, तो बहुत अच्छा है. देखो, आप कड़वे नीम को अच्छे से धो के एक डाली पूरी ऐसे पतीले में भिगा दीजिए. हाँ. और फिर उसको आप गरम करके भी ठंडा करके ले सकते हैं, और पूरा दिन भिगा के धूप में रख के आप उसको छान के उसका भी एनिमा करवा सकता है. उसी के पानी से स्नान करने का, और कड़वे नीम का फ्रेश पेस्ट यानी चटनी जैसा पेस्ट बना के उसको पूरे बॉडी पे रगड़ने का. और हो सके तो अगर बिटिया घर पे है तो उसको जैसे कड़वे नीम का पेस्ट बॉडी पे रगड़ के उसको धूप स्नान यानी सन बाथ लेना है थोड़ी देर के लिए. हाँ, 15-20 मिनट, आधा घंटा जितना ले पाए. हाँ, तो ऐसे आधा घंटा ले पाती है तो बहुत अच्छा है. और सुबह का धूप, हाँ, सुबह की धूप होनी चाहिए. और फिर आप वो जैसे स्नान करने जाए तो पहले पानी डाल दे सादा, फिर वो कड़वे नीम के पानी से नहाए. और घर्षण स्नान यानी ऐसा एक थैली हमारे यहाँ तो आता है, घर्षण, उसको घर्षण मोजा कहते हैं, वो हाथों में पहन के, खादी का होता है, और उससे हम घिस के नहाते. लाओ तो स्क्रब करके नहाते. स्क्रब, हाँ, तो उससे हम लोग घिस के नहाते हैं, उससे घर्षण स्नान कहते हैं. तो उससे उसकी इचिंग कम हो जाएगी. और हमारे पास ऐसा कड़वे नीम का स्पेशल एक इचिंग ऑयल भी है, और दूसरा है इचिंग ऑयल, और ये है घर्षण थैली. हमारे पास ऐसी, आपके पास जो भी स्क्रबर है, हम ऐसे हाथ में पहन लेते हैं और फिर हम पूरे बॉडी पे स्क्रब करके नहाते हैं. तो ये जो इचिंग ऑयल है, ये आपको पहले घिसना होता है, पूरे बॉडी में मसाज करना है, और फिर आप ये नहाने के बाद भी लगा सकते हैं. और दूसरा हमारे पास है राड़ का मलम. तो ये राड़ के मलम कोकोनट का आता है स्पेशल, और इस मलम से एक्जिमा तक चला जाता है. तो सोराइसिस एक्जिमा तक चला जाता है. तो बिटिया का भी ये जो इचिंग का प्रॉब्लम है, सारे स्किन डिसीज जो होते हैं ना, वो डेयरी और बेकरी से होते हैं. तो डेयरी प्रोडक्ट और बेकरी प्रोडक्ट कंप्लीट उसे बंद करा दीजिए, और कोई भी आटा नहीं. आप, वो बिटिया है, अगर पूरे कंप्लीट रॉ डाइट पे अगर नहीं रह सकती है तो आप उसको शाम के वक्त उपमा, पोहा, मुरमुरा, मखाना और ऐसी चीजें आप दे सकते हैं, जिसकी वो भेल वगैरह बना के खा सकती है. लेकिन उसको मीठी चीजें मत देना. जो भी स्वीट जूसिस है या स्वीट फ्रूट्स है, वो कम, अभी शुरुआत के दिनों में कम देना. हो सके तो ना ही देना. और जो नींबू के बारे में जो बोल रही हूं मैं, अगर आप रोज अपना उपवास क्रश किए हुए नींबू पानी से, आप पूरा छिलके के सहित क्रश किए हुए 2 नींबू की छिलके हमारे पेट में जाने चाहिए.
तो आपको एक को फ्रोजन कर दीजिए और जिसको आप फिर ग्रेड करके सलाद में डालिए, जिससे उसका छिलका आ जाएगा। और एक नींबू रोज आप क्रश करके छान के बिना नमक के, आप ऐसे ही केवल पानी डाल के छान के उसे 1 गिलास जितना बने वो आप पी लीजिए। उससे अपना ब्रेकफास्ट कीजिए, सॉरी फास्ट आपका ब्रेक कीजिए। तो उससे क्या होगा कि रोज का ये नियम होगा तो आपकी एसिडिटी भी चली जाएगी, क्योंकि एसिडिटी की मेन जो दवा है वो है नींबू। तो एसिडिटी भी चली जाएगी और स्किन डिसीज भी आपका नींबू ही मिटाएगा। तो हम सोचते हैं कि नींबू खाने से, हमें खट्टा खाने से खुजली आती है या कोई भी स्किन में प्रॉब्लम होते हैं, लेकिन ये बिल्कुल सच नहीं है। क्योंकि मुझे भी पूरे बॉडी में बहुत इचिंग होता था। जब भी मैंने सिस्टम शुरू किया तो मैंने 3.5 दिन का निर्जल उपवास किया, कि मैंने निर्जल से अपने बॉडी को डिटॉक्स किया था। तो निर्जल उपवास शुरुआत में किए और फिर उसके बाद मैंने अंगूर पे 50 दिन किए, 1 दिन अंगूर का जूस और 1 दिन निर्जल उपवास, ऐसे मैंने शुरुआत की थी। तो पहले 21-22 दिन मुझे इतनी खुजली आई थी, क्योंकि मैंने सेट्रिजिन वगैरह टैबलेट पहले के बहुत खाई थी। मैं जब भी खाना खाती थी तो मुझे सेट्रिजिन या डायोवन जो यहाँ पे मिलती है एंटी एलर्जिक टैबलेट खा के ही फिर मैं खाना खा सकती थी, क्योंकि मुझे भी बहुत इचिंग होती थी। तो फिर मैंने जब ये प्रयोग किया तो पहले 22 दिन मुझे बहुत बहुत खुजली आई। मैंने पूरे बदन में जैसे समझो खुजला के लहू निकाल दिया था, और इतना खून निकलता था कि मैं जब भी खुजली करती थी तो फिर चौहान साहब ने बोला कि आप अपने नाखून काट दो और हाथों में दुपट्टे बांध लो और जितनी भी खुजली आती है आने दो। फिर मैंने कड़वे नीम का प्रयोग किया और 22 दिन मैंने खुजली को सहन किया, और फिर मुझे आज तक 12.5 साल में कभी भी आज तक मुझे खुजली नहीं आई है। जो भी हमारा रोग है, पहले जब हम सिस्टम शुरू करते हैं तो हमारा जो भी रोग है पहले बढ़ेगा तभी तो निकलेगा। तो पहले बढ़ेगा, हमें घबराना नहीं है। जो भी होता है होने दो, केवल कड़वे नीम का प्रयोग करो और उसे बिटिया को करेले का जूस पिलाओ। कड़वा जूस स्किन डिसीज में बहुत फायदा करता है। तो दिन में 1-2 बार आप करेले का जूस पिलाए, और केवल करेला, एक बार भले आप करेला, ककड़ी और टमाटर तीनों का मिश्रण, यानी 2 करेला छिलके के सहित सब कुछ लेना है। 2 करेला, 2 टमाटर, 2 खीरा या ककड़ी, जो भी आपके यहाँ ककुम्बर मिलती है वो केवल चख के डालनी है कि वो कड़वी ना हो। इसका जूस बना के जूसर में या किसी में आप जूस बना के पिए, उसमें नमक बिल्कुल ना डाले। नमक स्किन डिसीज के लिए जहर है। तो हो सके उतना नमक बिटिया कम ले, मीठी चीज भी कम ले, और खाने में सिंपल कर दे। जो भी शाम का भोजन ले उसमें सूप और सब्जी ज्यादा ले, उसमें हो सके तो मिर्ची भी न डाले, हल्का सा रॉक सॉल्ट डाल दे, और ग्रीन वेजिटेबल बना के खाए और उसी से अपना पेट भर ले। तो उसको हमें ये मिलेट्स वगैरह ना देने पड़े, और अगर देने पड़ते हैं तो थोड़े से मिलेट्स वो अपना पेट भरने के लिए, क्योंकि बिटिया है तो छोटी है, तो अगर इतना कंट्रोल नहीं कर पाती है तो आप उसे ज्यादा से ज्यादा सूप और वेजिटेबल्स, बॉइल्ड वेजिटेबल्स और कम तेल में पकाए हुए वेजिटेबल्स ज्यादा दें। स्टीम आइटम दे सकते हैं, स्टीम आइटम। Thank you so much, Dharti Ben. And हाँ I जी, think, thank you so much. So I'll call you back, and I like to say Welcome. everyone, thank you so much. We'll see you next month. And we will Welcome. post Dharti's phone number, Mukesh Bhai's phone number on our website, so you could always contact them directly and talk to them if you need to. Thank अच्छा, you. welcome. Thank you for coming early in the morning for us and helping us out today. And everybody has thoroughly enjoyed the talk. Thank you. Good night, everyone. Thank you. Thank you, Dharti Ben. Thank you. Thank you. Welcome. Thank Welcome. you. हाँ जी, welcome. Thank you, Punita and Deepak Bhai. Thank you, Deepak Bhai and Punita Ben. Yeah. Thank you. Thank you, guys. Bye. Thank you. Thank you, Munish Bhai. Thank you, Munish Bhai. Thank Bye. you.
Thank you, guys. Thank It you. was great. Thank you for arranging a nice seminar. Yeah, thank you. Very good seminar. Thank you. Good. Thank you, Deepak bhai. Thank Thank you. you. Deepak bhai, thank you. Thank you, Deepak bhai. I'll talk to you later on, please. Yeah, definitely. Okay. Thank you.